Yes, Mark. Hello, good evening, everyone. On behalf of the organizer and founder of CASA, CA Sumit Gargji, I, CA Himang Singla, extends a very warm welcome to all the participants who have joined us today for this webinar on GSTR 9 annual return and GSTR 9C reconciliation statement. All the participants today will surely gain essential insights into the annual GST compliance process. This session will guide us professionals through the key requirements, recent updates, changes, and practical challenges involved in preparing the GST annual return and reconciliation statement. We will also cover important areas such as input tax credit disclosures, spillover effects, and common mistakes to avoid while filing. This discussion will not only enrich our technical knowledge, but will also equip us with practical applicability to apply in our professional journey for filing GSTR 9 and 9C. At the outset, I would like to inform all the participants that all your queries will be taken up at the end through an interactive Q&A session. So we encourage all the participants to note down their queries and keep sending them in the chat box. So first of all, I would like to request C. Sumit Garg ji, founder CASA, for his welcome address. Thank you, Himang ji. Thank you. Thank you, Mohit ji, for your giving your precious time as always. I request to you and you always say yes. कब करना है बताओ. So that member can get the benefit of this knowledge. Welcome to all participant. I hope everyone getting the mail but not receiving my WhatsApp because due to the ban of certain spam matter, so my WhatsApp is not working. But through mail, I am connected through social media. I am very much connected to each one of you, and definitely we will organize more webinar on other topics in future as well. And I hope today is the time to learn about the GSTR 99C, and our team member Asha ji is also here, Himang ji, and many other participants I can see. With this, I once again welcome to each one of you. Now I over to you, Himang. Himang, are you there? No. Himang, Yes, you? yes, he's there. He's there. Sorry, sorry, Yes, sorry. yes, 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 Himang. Okay. Thank you, sir. So today's webinar will be deliberated by our esteemed speaker, CA Mohit Golcha ji, and it is indeed my privilege to introduce him. CA Mohit Golcha ji is a distinguished professional with rich academic and professional credentials. He is a fellow chartered accountant, qualified in the year 2010, and is also a 2019 pass out of Bachelor of Law degree from Delhi University. He is additionally a certified GST practitioner from ICAI. With over a decade of professional experience, he is currently serving as partner at AGMS and Company Chartered Accountants. अच्छा. His expertise in GST has earned him wide recognition across the country. He is also a renowned GST corporate trainer and a respected guest faculty, having delivered numerous sessions across leading institutes of India. He has been consistently contributing to capacity building by conducting seminars and workshops across the country. He is also the author of the acclaimed publication Refined in GST, which is a dedicated work that has received appreciation for its practical insights. Apart from all his professional accomplishments, he is a passionate sports person with special interest in cricket. We are truly honored to have him with us today, and I warmly welcome CA Mohit Golcha to address the participants. The platform is all yours, sir. मोहित जी, बिफोर यू स्टार्ट, मैं आपकी पॉपुलैरिटी देखिए, हाउस मीटिंग हाउसफुल है एट 2-3 मिनट्स लेटर, है ना, इस मीटिंग के. सर, आप ही की पॉपुलैरिटी है, हम तो बस वो हैं। नहीं इसके नहीं अंदर सर. स्टार बुला लिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी सब आप ही का सेटअप है सर। नहीं नहीं सर. ऑल क्रेडिट योर्स इन टर्म्स की डिस्पाइट दी कि आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, उसके बाद यू कैन सी योर पॉपुलैरिटी। हम तो एक माध्यम है सर आपसे जुड़ने के लिए। चलिए, विद दिस, क्योंकि सुमित जी का डे इन डे आउट एफर्ट रहता है टू इंश्योर कि दैट ही इज एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड खासकर प्रोफेशनल सोसाइटी को ही गिव्स इन वट एवर मैनर ही कैन डू। उसमें से एक मैनर हमारा भी है कि जहाँ पे हम सबको जोड़ के रखते हैं, और जब भी कभी भी बुलाते हैं तो हमसे मना तो करने का सोच ही नहीं सकते हम, क्योंकि लव एंड थैंक यू. अफेक्शन इतना है कि कभी भी कहीं पे भी वी वुड बी डिलीवरिंग इट आउट। सो
With this, I thank Sumit ji and Casa team and Himang for introducing me. मेरे को भी नहीं पता था, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया, थैंक्स फॉर दैट. सो विद दिस आई थिंक वी स्टार्ट दिस सेशन. अब सेशन में एक चीज क्या करते हैं, क्योंकि अब जीएसटी आए हुए भी काफी टाइम हो गया और हम सब कहीं ना कहीं चैंपियन बन चुके हैं, तो बेटर ये रहेगा कि एक बस हल्का सा एक हम चैट बॉक्स में एक पोल देखेंगे कि पहले आईटीसी शुरू किया जाए या आउटवर्ड टैक्स शुरू किया जाए. 30 सेकंड का है, यस या नो, क्योंकि ऐसा लगे कि आप लोग हो, नहीं, कहीं पता चले कि आईटीसी करीब वर्सेस मोहित जी, आईटीसी वर्सेस आउटवर्ड टैक्स. आउटवर्ड टैक्स. आईटीसी बस. रिप्लाई आ रहा है, मोस्टली आईटीसी. सो यू हाँ, कैन. तो इसी में है ना आनंद, इसी में है. तो यस. एक चीज ये समझ में आ गई, ऑडियंस कह रही है कि पहले डिफिकल्ट पेपर, अच्छा इजी पीजी है अभिनव, वेरी गुड. हाँ, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझते हैं. इसके साथ साथ एक चीज और क्या करेंगे, क्योंकि जो सर्कुलर आया है या जो एफएक्यू आया है उसकी ब्यूटी भी समझेंगे, और हम आज थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो सोर्स है हमारा एएसएमटी 10 का या शोकोज नोटिस का, जो सोर्स है बेस्ड ऑन द रिकंसिलेशन, उसको किस तरीके से मीट आउट हम कर सकते हैं वाइल फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न. सो विद दिस मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये होगी, अगर कॉपी पेन हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा. मतलब हम वापस अगर बेसिक्स पे चले जाएंगे, आईटीसी की ही बात करेंगे और आईटीसी का चेंज ऐसा समझेंगे जो इन्होंने एफएक्यू में दिया है, वो चेंज आया क्यों है. क्योंकि जब हम कभी ये चीज समझ लें ना आया क्यों है, तो हमें आराम से टेबल भरने में आसानी रहेगी. उसके बाद हम टेबल्स की डिस्कशंस करेंगे और मैं केस स्टडीज के साथ जो एफएक्यू में, वो मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, फिर एफएक्यू चेक कर लेंगे. एफएक्यू भी वही कहता है तो वेल एंड गुड, नहीं कहेगा तो फिर हम या तो हम सुधरेंगे या एफएक्यू को सुधार देंगे. दो में से एक काम हम अपना शुरू करते हैं. तो आईटीसी, अभी हम बात करेंगे आईटीसी लॉ पॉइंट, तो एक हो गया सेक्शन 16 के कंटेक्स्ट में. तो आईटीसी का जन्म कहां से होगा? सबसे पहले आईटीसी की अगर जब बेसिक कंडीशन की हम डिस्कशन करेंगे, देयर शुड बी एन इनवॉइस. इनवॉइस होने के बाद जो 16 के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई करी है, अज्यूमिंग दैट वी हैव सेटिस्फाइड दीज कंडीशंस, ये सेटिस्फाई करने के बाद हमें सबसे पहला काम, हमारा जो आईटीसी का सबसे पहली रिपोर्टिंग जब भारत सरकार के पास जाती है, वो कैसे जाती है? इट इज थ्रू जीएसटीआर 3B. अब जीएसटीआर 3B, आप जब भी आईटीसी फाइल करेंगे, मेक श्योर जो जीएसटीआर 3B की आईटीसी रिपोर्टिंग की टेबल्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए. रीजन बीइंग क्या है कि यहां से ही कनेक्टेड आपकी एनुअल रिटर्न. तो मैं कुछ टेबल्स बोलूंगा अभी, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैं सिर्फ ऑल अदर आईटीसी की डिस्कशन करूंगा, दैट मीन्स अदर देन रिवर्स चार्ज क्रेडिट के बारे में. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो क्रेडिट है वो क्रेडिट है विच हैज बीन रिपोर्टेड इन 2B. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास कहां से गई थी. वो कहां से गई थी? वो सबसे पहले 2B के अंदर आई. 2B के बाद वो ऑटो पॉपुलेटेड कहां पर हुई? 4A5. तो पहला टेबल आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे वो लिखेंगे टेबल 4A5. नाउ व्हाट डज टेबल 4A5 सेज? इट सेज ऑल अदर आईटीसी. मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर्म में याद करेंगे जैसे बचपन में याद करते थे, उसी से पूरी 9 हम पूरी कवर अप करके ले जाएंगे. तो पहला क्या लिखेंगे? टेबल 4A5 इक्वल टू ऑल अदर आईटीसी रिपोर्टेड इन करंट मंथ जीएसटीआर 2B. ठीक है, यही होगा. इसके अंदर क्या होगा? अगर कोई रिक्लेम्ड आईटीसी होगा वो आ जाएगा, या प्रीवियस ईयर का आईटीसी जो मैंने इस साल लिया होगा वो आ जाएगा. तो दो और ऐड कर लेते हैं. प्रीवियस ईयर आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B ऑफ लास्ट ईयर, अवेल्ड इन करंट ईयर. तो 4A5 में ये जुड़ जाएगा, प्लस रिक्लेम्ड आईटीसी. अब ये 3 आईटीसी की ही सारी रिपोर्टिंग होनी है जीएसटीआर 9 के अंदर. इसके अलावा कोई और आईटीसी आप लोगों को लगता है कि जो 4A5 में आ सकता है? अगर है तो चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई डाल देना, अदरवाइज हम प्रिज्यूम करेंगे यही है. अब जब ये 3B के अंदर जब रिपोर्ट होता है, अब 3B हमसे क्या मांग रहा है? गवर्नमेंट हमसे क्या मांग रही है
आईएमएस को भी थोड़ा टच बेस करेंगे। तो 4A5 से एक क्रेडिट तो क्रेडिट लेजर पे चला जाता है, एक क्रेडिट को वो कहते हैं कि जी 4B1, दूसरी टेबल लिखेंगे 4B1, उसके आगे लिखेंगे परमानेंट रिवर्सल, 4B1 परमानेंट रिवर्सल। तो जो 4A5 में है और अगर वो परमानेंट रिवर्सल है तो व्हाट डज इट मीन, वो क्रेडिट भारत सरकार के पास चला गया, उस क्रेडिट का एंड हो गया, अब उस क्रेडिट को ट्रेवल नहीं करना कहीं पे भी। फॉलोड बाई आईटीसी 4B2, दैट इज टेम्पररी रिवर्सल क्रेडिट। वो क्रेडिट जो मुझे आज नहीं मिल रहा या आज मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, रीजन, if I am not satisfying any of the conditions stated in section 16 or I do not know whether this credit pertains to me or not, तो मैंने उसको कहां ले गया, मैं टेम्पररी लेजर के अंदर। क्लियर हो गया? 4A5, 4B1, 4B2। इसको आईएमएस से भी लिंक करते हैं। पहले आईएमएस में कौन से कलर्स यूज करते हैं, या बचपन में हमने रेड लाइट जब देखी थी तो कौन कौन से कलर थे? एक ग्रीन कलर था, एक ऑरेंज कलर था, एक रेड कलर था। तो जो आईटीसी मेरे क्रेडिट लेजर में चला जाएगा वो कौन से कलर में फॉल करेगा? ग्रीन कलर में, क्योंकि वो मेरा है। जो क्रेडिट 4A5 में है, 2B में है, बट वो परमानेंट रिवर्सल है 17.5 से, उसका साइन कौन सा होना चाहिए? रेड। तो वो रेड में चला जाएगा, रेड लाइट से स्टॉप, तो वो क्रेडिट अपने आप वहां पर स्टॉप हो गया। देन वी हैव दी ऑरेंज लाइट। ऑरेंज लाइट क्या कहती है? देखो। तो हमारे लिए 4B2 क्या है? देखो। देखने के बाद अगर हमें लगता है कि यार नहीं हमें इसे लेना है, तो या तो ये क्रेडिट लेजर में ग्रीन लाइट पे चला जाएगा, और लेने के बाद या तो ये परमानेंट रिवर्सल में चला जाएगा 4B1 में। तो क्रेडिट रेस्ट कहां करेगा? या तो क्रेडिट लेजर के अंदर जाके या 4B1 के अंदर। इज इट क्लियर? आई होप ये चैप्टर हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हमें 9 समझ में आएगी और हम किस तरीके से अपने शोकोज नोटिस डिफेंड कर पाएंगे। तो हमने क्या क्या लिख लिया? 4A5 लिख लिया, 4B1 लिख लिया, 4B2 लिख लिया। नाउ राइट 4D1। 4D1 क्या है? जब भी मैं अपने टेम्पररी क्रेडिट लेजर से अवेल करके 4A5 में लेके जाऊंगा तो हमेशा मुझे किसको हिट करना है? 4D1 को। मेक श्योर 4D1 हिट हो जाए, क्योंकि 4D1 इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन सोर्स थ्रू विच नोटिस आर बीइंग जनरेटेड। रीजन बीइंग, जब मैं 4A5 में अगर रिवर्सल रिक्लेम्ड लेजर को हिट करता हूं और 4A5 में डायरेक्ट पिक्चर तो डाल दी, डायरेक्ट आईटीसी तो डाल दिया, वो डायरेक्ट आईटीसी को कंपेयर करता है मेरे उस करंट मंथ के 2B से। अगर मैंने 4D1 को हिट नहीं करा तो देयर वुड बी अ मिसमैच। वो मिसमैच क्या होगा कि आईटीसी अवेल्ड इज लेसर देन द आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। तो 4D1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो हम लोग भूल जाते हैं जब हम रिवर्स क्रेडिट लेने जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या कहता है? यू हैव अवेल्ड एक्सेस क्रेडिट। तो हमें ध्यान के रखना है 4D1। 4D1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। 4D2, now what does 4D2 says? It says an ineligible credit on account of two factors. एक, ऑन अकाउंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, कि मैं दिल्ली में हूं और उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, तो इट वुड बी रिपोर्टेड इन 4D2। सेकेंडली, इट वुड बी अ क्रेडिट जो अब मेरे पिछले साल का है। कौन से साल का है? 24-25 का क्रेडिट। अब जब रिपोर्ट होगा पोस्ट 30 नवंबर, जब वो रिपोर्ट होगा तो वो कहां हिट करेगा? हमें 4D2 के अंदर, जिसको उन्होंने बोला है सेक्शन 16 सब क्लॉज 4। तो 9 भरने से पहले और इफेक्टिवली आईटीसी करने से पहले हमें समझना क्या है? हाउ वी आर रिपोर्टिंग इन टेबल
ऑफ जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B में करंट ईयर भी है एज वेल एज मेरा प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, उसमें दोनों रिपोर्टिंग है। अब 9 में बताओ क्या भरना है। 9 जो रिपोर्ट होनी है वो करंट ईयर से होनी है। जब करंट ईयर से रिपोर्ट होनी है और ऑटो पॉपुलेटेड फिगर के अंदर करंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है। अब इसके बाद अभी हमने क्या कर लिया, टेबल जीएसटीआर 3B की सारी टेबलें लिख ली। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स जो जीएसटीआर 9 की है एंड ऑल रिलेटेड विद दी आईटीसी। ये आप लिखोगे, उसके बाद मैं एक्सेल शो करूंगा। तो पहली टेबल जो बनती है हमारी, दैट वी से टेबल नंबर 6A। नाउ टेबल 6A स्टेट्स इट्स एन ऑटो पॉपुलेटेड फिगर जो कहां से डिराइव होगी, 4A 5 से। तो जो आपने लिखे हैं 3B के टेबल्स, उसके साथ में या उसके सामने या उसके नीचे जहां आपको अच्छा लगे वहां लिख लो टेबल 6। Now table 6A says it's an auto populated credit flowing कहां से फ्लो कर रहा है, जीएसटीआर 3B से। और इसके अंदर क्या क्रेडिट है, करंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है और रिवर्सल रिक्लेम्ड क्रेडिट भी है। एग्रीड। इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 6A1, द न्यूली इंसर्टेड टेबल। हम एफएक्यू को कैसे पढ़ेंगे, एक तो ये है कि मैं एफएक्यू खोल दूं, दूसरा ये है कि रिस्पेक्टिव टेबल पे एफएक्यू ने क्या कहा। द न्यूली इंसर्टेड टेबल 6A1 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एफएक्यू। अब जब आपने मुझे ये बोला था कि मोहित, जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो आपको क्या फाइल करना है, करंट ईयर का आईटीसी। और जो आप मेरे को बेस फिगर दे रहे हो उसमें क्या है, करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। तो 6A1 states the credit which are pertaining to the previous year to be reported in 6A1, the most important table which has been inserted in this form. इसकी वजह से I am not able to understand, can you please explain it in easy way, कृष्णा जी। तो पहले हमें टेबल्स समझनी बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग कि भाई हमें आज की डेट में एनुअल रिटर्न भरनी कैसे है। तो जो जीएसटीआर 3B की बेसिक टेबल जो आज तक आप भर के आ रहे हो, वहीं से ही मेरी टेबल्स बनेगी एनुअल रिटर्न की। तो एनुअल रिटर्न की जब मैं टेबल की डिस्कशंस करूंगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जब आती है एनुअल रिटर्न की, उस एनुअल रिटर्न की टेबल को बोलते हैं हम 6A, जिसमें ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आता है जीएसटीआर 3B के माध्यम से। तो जीएसटीआर 3B के 4A 5 में जो इतनी भी फिगर होगी वो आपकी 6A के अंदर आ जाएगी। उसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर भी है और करंट ईयर भी है। प्रीवियस ईयर की सारी फिगर को बाहर करने के लिए एफएक्यू के द्वारा एक नया टेबल इंसर्ट किया गया विच इज नोन एज 6A1। 6A1 में आपने क्या डाला, प्रीवियस ईयर आईटीसी अवेल्ड इन करंट ईयर। 6A माइनस 6A1 जब हम करेंगे ऑटो पॉपुलेटेड में से अगर प्रीवियस ईयर को घटा देंगे तो हमारे पास क्या क्रेडिट बचेगा, करंट ईयर का क्रेडिट। ये जो करंट ईयर का क्रेडिट होगा ये आपके 2B पे होगा और इसी के अंदर आरसीएम भी छुपा होगा। तो आरसीएम को हम अलग रिपोर्ट करेंगे और जो 2B का क्रेडिट है वो हम अलग दिखाएंगे। तो अब हमने क्या टेबल कर ली, एक कर ली हमने 6A जो ऑटो पॉपुलेटेड है, 6A1 प्रीवियस ईयर का आईटीसी जो करंट ईयर में लिया है, 6A2 टेबल 6A2 क्या है, ऑटो पॉपुलेटेड फिगर माइनस प्रीवियस ईयर आईटीसी। तो अभी हम यहां पर समझते हैं इतनी सी बात को। तो एफएक्यू ने 6A1 हमें एक नया दिया। सेकेंडली, हम जब इस क्रेडिट को समझ रहे हैं तो क्रेडिट दो तरीके का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारा। एक क्रेडिट को बोला इन्होंने जो नॉर्मल क्रेडिट है और एक क्रेडिट को इन्होंने बोला जो अदर देन 37 रूल 37 एंड रूल 37A।
एफएक्यू ने आईटीसी को दो हिस्सों में बांट दिया इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी रिपोर्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तो उससे पहले हम ये समझ लें कि रूल 37 क्या होता है और रूल 37A क्या होता है। रूल 37 कहता है कोई भी आईटीसी जो आपने पहले लिया है, अगर आपने उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी तो आपको रिवर्स करना है। क्या कहता है? जो भी आईटीसी आपने ओरिजिनली ले लिया जो एलिजिबल था, हाउएवर यू हैव नॉट मेड द पेमेंट, बट उसको आपको रिवर्स करना है अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, उस क्रेडिट को लेने की कोई लाइफ है? चैट बॉक्स में आंसर करें, उस क्रेडिट को लेने की कोई लाइफ है? मतलब जो हमने 180 दिन का क्रेडिट रिवर्स कर दिया, नो। तो हम जब भी पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट मेरा एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ ऑफ 16(4) रिक्लेम नो लाइफ। तो हमने यही पूछा क्या क्रेडिट की कोई रिक्लेम लाइफ है? आंसर इज नो। तो 2017 में मैंने कोई क्रेडिट लिया अज्यूमिंग अगस्त 2017 में क्रेडिट लिया था और उसको मैंने रिवर्स कर दिया था मार्च 2018 में ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट विद इन 180 डेज। उसकी पेमेंट मैंने फरवरी 2025 में करता हूं। उसकी पेमेंट अगर मैं फरवरी 2025 में करता हूं तो वो क्रेडिट कौन से पीरियड का है? 17-18 का या 24-25 का? अभिनव जी कह रहे हैं 17-18 का। अब अगर इसको मैंने 17-18, 24-25, 17-18, तो एफएक्यू ने क्या क्लैरिटी दी कि सबसे पहले एफएक्यू ने इस वाले क्रेडिट को बताया ये क्रेडिट कौन से पीरियड का मानना है आपने। ये क्रेडिट आइडियली कौन से पीरियड का होना चाहिए? 24-25। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन गिवन इन द एफएक्यू। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफएक्यू ने क्या बोला? जब भी आप रिवर्सल रिक्लेम क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 अगर आप लेते हैं या 37A लेते हैं, उसको हम उसी पीरियड का क्रेडिट मानेंगे जिस पीरियड में आप पेमेंट कर देंगे। देयर बाय व्हाट इट मींस कि जब मैंने फरवरी 2025 में अगर उसकी पेमेंट करी तो ये क्रेडिट मेरा कौन से पीरियड का होगा? 24-25 का। डिस्पाइट द फैक्ट वो इनवॉइस डेटेड कौन सा है? 17-18। क्यों कहा? क्योंकि जब मैं 24-25 में इसको अवेल करूंगा तो ये 24-25 के टूबी में तो आएगा नहीं। सो दीज आर दी स्पेशल क्रेडिट्स। और इसको अगर सेपरेटली कहीं रिपोर्ट नहीं करा तो रीजन क्या होगा? अगेन आई विल फेस अ चैलेंज और अ नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेइंग that you have availed the credit which is not there in your GSTR 2B। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या समझना है हमें? जब भी हमने कोई भी रिवर्सल अपनी GSTR 3B में करा है ऑफ FY 24-25 या उससे पहले, उसका नेचर समझना जरूरी है। तो जो भी क्रेडिट 37A के कंटेक्स्ट में अगर हुआ है उसकी रिक्लेम लाइफ इज जस्ट लाइक एन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब उसकी कोई लाइफ नहीं है, जिस दिन भी मैं पेमेंट करूंगा वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। इनके अलावा मतलब रूल 37 और 37A के अलावा 37A रूल क्या कहता है? कहता है अगर मैंने कोई क्रेडिट लिया बट मेरे वेंडर ने GSTR 3B फाइल नहीं करी बट वो 2B पे आ गया, तो सरकार ये कहती है कि जब भी वो अपनी 3B फाइल कर देगा, सिमिलरली जैसे हमने यहां पेमेंट करी वैसे ही वो जब भी 3B फाइल कर देगा वो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। उसमें कहीं पे भी कोई टैट नहीं है इन रिस्पेक्ट दैट इट शुड बी अवेल्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये दो क्रेडिट कौन से हो गए? स्पेशल क्रेडिट्स। इसी के कंटेक्स्ट में जो इस बार की एनुअल रिटर्न हमारे पास जो आई है बनके, उसमें सारे रिवर्सल के जो टेबल्स हैं वो मैंडेटरी करती है। जो
एनुअल रिटर्न है, उसमें रिपोर्ट करने होते थे ना, टेबल नंबर 7 में हमें रिवर्सल की नेचर को रिपोर्ट करना होता था। आज से पहले वो ऑप्शनल थे, बट इस साल से वो सारे के सारे मैंडेटरी हो गए। ठीक है, उससे पहले एक ट्रान का इन्होंने मैंडेट किया हुआ था कि ट्रांजिशनल क्रेडिट का कुछ रिवर्सल है तो वहां दिखा देना, बाकी सारे के सारे ऑप्शनल थे। बट विद दिस ईयर दे हैव मेड इट मैंडेटरी। तो आई होप हमें आईटीसी समझ में आ गया, 37 ये वाला। अब दूसरा आईटीसी समझते हैं। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहां डिस्टिंग्विश नहीं करा, कि आपको अगर ये नहीं समझ में आया कि मेरा आईटीसी अदर देन 37 ए कौन सा है, और आईटीसी रिप्रेजेंटिंग 37 ए क्या है, तो हम टेबल की रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा क्रेडिट कौन सा है? वो क्रेडिट जिसकी शेल लाइफ क्या है, वो कब तक ले सकते हैं हम? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। ये कौन सा क्रेडिट है? नॉर्मल क्रेडिट, जिसकी अवेलमेंट कब तक करनी थी मुझे? 30 नवंबर 2000 ऑफ नेक्स्ट ईयर। अज्यूमिंग अगर मैं 24-25 की बात कर रहा हूं, तो 30 नवंबर 2025 तक मैं इसे अवेल कर सकता हूं। बट इफेक्टिवली अब टू बी का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? 11 तारीख को तो जीएसटीआर 1 चली जाती है, फिर टू बी जनरेट हो जाता है। तो अगर वो टू बी जनरेट हो गया, तो अगर जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल हो गई, तो आई कुड अवेल दिस क्रेडिट टिल 30 नवंबर 2025। तो ये सारे क्रेडिट क्या हैं जिनकी शेल लाइफ क्या है, जो टाइम बार्ड कब हो जाएंगे? 30 नवंबर। इनको हमने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं सीधा जीएसटीआर 9 की टेबल्स। ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू या ओनली स्पेसिफिक टू माई आईटीसी। तो हमने अभी तक क्या कर लिया था? टेबल 6A 6 कर ली, 6A कर ली थी, 6A1 कर ली थी, 6A2 कर ली थी। एक हम लिख लेंगे टेबल 6B। टेबल 6B में क्या करना है? सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ आईटीसी बताना है हमें, कि आईटीसी का, कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितना है, इनपुट्स का कितना है, सर्विसेज का कितना है। मैंने अभी जब मैं आपको अभी एनुअल रिटर्न के बारे में बता रहा हूं, तो मैं स्पेसिफिकली आरसीएम के क्रेडिट को एक बार एक्सक्लूड करके चल रहा हूं, मेक श्योर। तो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो टेबल 6B में क्या जाती है, कि वो इनपुट क्या, इनपुट सर्विस क्या और कैप गुड्स क्या। उसमें कैपिटल गुड की क्रेडिट की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के बीच में उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि इनपुट सर्विस का जो क्रेडिट है वो आप इनपुट्स में दिखा सकते। तो मेरा टेबल 6B क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रेडिट विच आर अवेल्ड इन GSTR 3B pertaining टू द करंट ईयर। अब जो फिगर मेरी 6B में आएगी, पहले हम रिपोर्टिंग करते हैं। ये 6B में आ गई। अब ये 6B का क्रेडिट कहां जाएगा? इट विल ऑटोमेटिकली गो, 6A विल कंटेन फिगर ऑफ 6A और 6A2। 6B में जो सर फिगर आएगी वो 6A2 की आएगी। 6A2 क्या है? मेरा करंट ईयर का आईटीसी। जैसे ही मैं जो फिगर 6B में फिगर पुल कर दूंगा या फिगर रिपोर्ट कर दूंगा, आप क्या लिखें? 6B इक्वल टू 8B। मैथमेटिकली क्या होगा? जो भी 6B के अंदर जाएगा वो कहां चला जाएगा? 8B के अंदर। तो 6B इक्वल टू 8B, चेक पॉइंट। अब मेरा क्रेडिट फ्लो कर रहा है। 6B में मैंने क्लासिफिकेशन दे दिया। नाउ आई एम मूविंग डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग दी टेबल। 6B के बाद इंपॉर्टेंट एक टेबल और क्या थी हमारी? वो कहते थे 6H, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जहां से कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी खड़ी होती थी। अब इन्होंने एफएक्यू में बिल्कुल क्लैरिटी से बता दिया है कि 6H क्या है। 6H वो है, वो क्रेडिट जो मैंने अवेल किया, रिवर्स किया और फिर रिक्लेम किया। मतलब रिक्लेम्ड क्रेडिट ऑफ एनी ऑफ द ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो करंट ईयर का हो, वो कहां जाएगा? 6H। तो 6H क्या हो गया?
अवेल्ड, रिवर्स्ड एंड रिक्लेम। इसके अंदर रिक्लेम्ड के अंदर क्या क्या आ सकता है? करंट ईयर भी आ सकता है, और जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था रूल 37 का, रूल 37A का, जो मेरे 17-18 में इनएलिजिबल, जो एलिजिबल नहीं हुए ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट, और जब मैं 24-25 में पेमेंट करूंगा उस क्रेडिट को स्पेसिफिकली कहां रिपोर्ट करना है मेरे को? 6H के अंदर। अब 6H के आगे आपने लिख लिया रिक्लेम क्रेडिट। 6H के बाद एक और इंपॉर्टेंट टेबल आई थी हमारी, दैट इज टेबल नंबर 6M। जो आज से पहले हम 6M में ये बोलते थे कि जो क्रेडिट प्रीवियस ईयर का वो 6M में रिपोर्ट कर देते थे। एफएक्यू ने बिल्कुल क्लैरिटी से बोल दिया है कि 6M में स्पेशल क्रेडिट ही जाएंगे। वो क्रेडिट जो मैं जीएसटीआर 3B के माध्यम से नहीं लेता। एग्जाम्पल आईटीसी 01, 02, 02A, दीज ऑल आर स्पेशल क्रेडिट्स। अब ये 2B पे तो नहीं आएगा, तो जब वो 2B पे नहीं आएगा तो इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगी, वो 6M को हिट करेगा, बट मेक श्योर इसमें प्रीवियस ईयर का क्रेडिट मत रिपोर्ट कर देना। 6M हो गया मेरा। नाउ मेरी क्रेडिट अवेलमेंट हो चुकी है, और एक आता है टेबल 6J। 6J अगेन विच जनरेट्स द नोटिसेस। आइडियली दे से 6J शुड बी 0। तो 6A1 के इंसर्शन होने की वजह से 6J would ideally become 0 in respect of all those credit which are pertaining to the previous year. तो वेलकम स्टेप क्या हुआ? 6A1 जिसने कहा प्रीवियस ईयर का क्रेडिट, देन 6H क्लैरिटी से समझा दिया क्या है, 6M अगेन दे हैव क्लैरिफाइड इन FAQ। अब मेरे पास क्रेडिट अवेल हो चुका। नाउ आई एम गोइंग टू द रिवर्सल। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो टेबल्स बोल रहा हूं ये अगेन इंपॉर्टेंट किस लिए है? इन ऑर्डर टू सेवगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द शो कॉज नोटिस, एंड इन केस अगर आपने गलत रिपोर्ट कर भी दिया है 3B के अंदर तो अब ठीक कर लीजिएगा। आप जितने भी रिवर्सल के टेबल्स हैं वो मैंडेटरी हो गए। रिवर्सल दो नेचर का होता है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो हम पहला रिवर्सल जब समझेंगे, जो टेबल नंबर 7A में उन्होंने बताया है, वो है रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37। तो आप लिख लें 7A इक्वलेंट टू रूल 37, और उसके आगे एक और निशानी डाल लें 180 डेज। ये क्रेडिट स्पेशल क्रेडिट है, और इसकी रिपोर्टिंग आपको स्पेशल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेवगार्ड योरसेल्फ इन द फ्यूचर ईयर। जब आप इस क्रेडिट को लोगे तो ये 2B पे नहीं आएगा उस साल में जिस साल आप लोगे। तो 7A की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, ऐसे ही 7A1 जो रूल 37A का है, जिसमें वेंडर ने 3B जब भी वो फाइल करेगा, अभी उसने 3B फाइल नहीं करी थी तो आपने उसको रिवर्स कर दिया था। इसका नेचर क्या है? टेम्पररी रिवर्सल। देन वी हैव अ परमानेंट रिवर्सल, जो टेबल 7 में उन्होंने अलग अलग जो आपको रिपोर्ट दी है 42, 43 का और रूल 39 का, ये सारी परमानेंट रिवर्सल हो जाएंगी। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको समझनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिवर्सल, दैट इज 7H। टेबल 7H क्या कहती है हमें? एनी अदर रिवर्सल प्लीज स्पेसिफाई। ये परमानेंट रिवर्सल नहीं है, ये एनी अदर रिवर्सल है जो वापस रिक्लेम भी हो सकता है। क्लियर है? और एक टेबल है जो है 7E, अगेन इट्स अ परमानेंट रिवर्सल। 7E कहता है ब्लॉक क्रेडिट का रिवर्सल। जितने भी 17(5) के क्रेडिट्स हैं वो हमारे वहां पर रिपोर्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया? आईटीसी की टेबलें जो 3B में थी, तो जब भी आप एनुअल रिटर्न भरना शुरू करेंगे तो मेक श्योर आप ब्रश अप कर लें कि 3B में कौन सी आईटीसी की टेबल थी। फिर हमने एनुअल रिटर्न की टेबल नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया, इन ऑल रिस्पेक्ट समझ लिया कि क्या रिपोर्ट होना है।
टेबल नंबर 7 को रिपोर्ट कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू अ टेबल जिसका शुरुआत कहां से हुई थी, ये कह के इट इज एन इंफॉर्मेशन टेबल, और ये कहा गया था कि नोटिस इससे जनरेट नहीं होंगे या इट वुड नॉट बी द बेस ऑफ द नोटिस। बट हाउएवर इन द पास्ट वी हैव सीन कि टेबल नंबर 8 जो एक रिकंसिलिएशन टेबल है उससे सबसे ज्यादा नोटिस आए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला टेबल क्या है, टेबल 8A। तो टेबल 8A में 23-24 तक की उसकी क्या पोजीशंस थी, मैं एक फॉर्मूला बोलूंगा वो आप लिख लीजिएगा सो दैट याद रहेगा आपको। टेबल 8A में उन्होंने बोला था, 24-25 के कंटेक्स्ट में सिर्फ मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। 23-24 में क्या हुआ था, 23-24 में उन्होंने बोला था कि इट विल बी कमिंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द जीएसटीआर 2B। तो जीएसटीआर 2B ऑफ 23-24 में क्या होता था, जब हम 2B की बात करेंगे तो उसमें क्या है, करंट ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है। तो आप टेबल 8A के आगे लिखिए 2B ऑफ 24-25। अब जब 2B ऑफ 24-25 है तो इसमें 23-24 का क्रेडिट भी इंक्लूड है। तो 2B ऑफ 24-25 में से आप लेस कर दें इनवॉइस डेटेड 23-24 रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ 24-25। आई एम अगेन रिपीटिंग 2B of 24-25 as such include invoice dated 23-24 reported till specified period of 24-25। उस क्रेडिट को घटा दो, माइनस कर दो। तो व्हाट आई एम सब्ट्रैक्टिंग, लेस आईटीसी ऑफ 23-24 रिपोर्टेड टिल स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ FY 24-25। इसमें ऐड क्या कर दूं, करंट ईयर का क्रेडिट पाने के लिए ऐड करेंगे हम आईटीसी ऑफ 24-25 रिपोर्टेड टिल स्पेसिफाइड पीरियड। दैट मींस 30 नवंबर तक अगर कोई भी क्रेडिट 24-25 का रिफ्लेक्ट होता है तो वो 8A में जुड़ जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर FAQ क्लैरिफिकेशन सेइंग दैट 8A अब क्या हो गया इफेक्टिवली 2A ऑफ FY 24-25। इसको करने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि जो एनुअल रिटर्न हमें कह रहे हैं वो कहते हैं 24-25 की भरो। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे 23-24 में, आपने 8A में तो फिगर पूरे साल की दी नहीं, तो रिकंसिलेशन बैठेगा कैसे। उसकी वजह से मेरा 8D नेगेटिव आता था, उसी की वजह से मेरे को टेबल 6M यूज करना पड़ जाता था कई जगह इन ऑर्डर टू सी कि सिस्टम जनरेटेड नोटिस ना आए। तो हमने 8A क्या हो गया, FAQ में जो सबसे अच्छी अमेंडमेंट एक और कौन सी आई, अपडेटेड 8A, 8A इक्विवेलेंट टू 2A ऑफ FY 24-25। बट वर्ड जो यूज होगा वो 2B ही होगा। रीजन बी सेक्शन में वर्ड क्या यूज हो रहा है, 2B। क्लियर, आई होप हमें ये वाली अमेंडमेंट भी समझ में आ गई कि अब इसकी वजह से रिकंसिलेशन मेरा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इसके 8A के अंदर क्या है, सिर्फ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर आपने घटा दिया, करंट ईयर को जो स्पेसिफाइड पीरियड तक रिपोर्ट हुआ उसे जोड़ दिया। 8B आपने क्या बताया था कि जो भी मैं 6B में लिखूंगा वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। 8C आईटीसी ऑफ 24-25 जो मैं अवेल कब करूंगा, 25-26 में, बट टिल दी स्पेसिफाइड पीरियड। तो मार्च 25 तक का क्रेडिट मेरे को कब तक लेना है, 30 नवंबर 2025। तो 8C में वो क्रेडिट आ जाएगा। 8D, 8D क्या कहता है कि जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर के क्रेडिट को कंपेयर करता है आपके करंट ईयर के अवेलमेंट से प्लस अवेलमेंट विच यू वुड बी मेकिंग टिल स्पेसिफाइड पीरियड।
अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव अवेल्ड अ क्रेडिट विच वाज नॉट देयर इन जीएसटीआर 2B। तो 8D अगर नेगेटिव आएगा तो यू वुड बी फेसिंग दी नोटिस। Mohit ji, प्लीज can you एक्सप्लेन please 8C वंस अगेन। 8A, 8A, right, right. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 8A अगेन, एंड कैन वी चेंज दिस फिगर? नो, 8A इज एन ऑटो पॉपुलेटेड फिगर। अब 8A जो 23-24 तक जब अगर हम देखते थे तो वो कहता था 2B से आएगा। अब कंसेप्ट उनको 2B का ही रखना था, तो 8A पहले इन्होंने कहां से पिक किया, 24-25 का 8A में 2B को डाल दिया। 2B ऑफ FY 24-25, उस FY 24 के 2B के अंदर 23-24 का क्रेडिट था। तो उन्होंने कहा भाई 23-24 को क्रेडिट को माइनस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं वो क्रेडिट जो है 24-25 का, बट रिपोर्ट हुआ टिल दी स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसको ऐड कर देते हैं। इफेक्टिवली अगर हम इसका सोर्स समझे या क्रक समझे तो ये GSTR 2A वापस बन चुका है, क्योंकि इट इज टेकिंग अ रिपोर्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस रादर देन डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये तो हो गया 8A। नाउ 8C के बारे में जब आपने कहा प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो जो क्रेडिट मेरा 8A में है उसमें से जो करंट ईयर में ले लिया टिल 31 मार्च 2025, वो तो मेरा कहां पे आ गया, 6B में आ गया और 8B के अंदर आ गया। वो क्रेडिट जो बुक्स में तो था, सब कुछ था, बट मैंने उसको अवेल पहली बार GSTR 3B में रिपोर्ट कब किया, अप्रैल 2025 से लेके नवंबर 2025 के बीच में अगर किया है तो वो 8C का पार्ट बने। तो हमने क्या क्या कर लिया, 8A कर लिया, 8B कर लिया, 8C कर लिया, 8D। 8D से नोटिस जनरेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर वो नेगेटिव आएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये अभी हम समझेंगे कि एक सवाल ये उठ के आया है, वो कह रहे हैं कि जो लास्ट ईयर का 8C है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 6A1। आइडियली यस, पार्शियली यस होगा, पार्शियली नो होगा। रीजन बीइंग, जब मैं 6A1 की बात कर रहा हूं तो वो प्रीवियस ईयर का क्रेडिट है, तो प्रीवियस ईयर का क्रेडिट इट में इंक्लूड द नॉर्मल क्रेडिट एज वेल एज RCM क्रेडिट। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। टेबल 13 जो है वो आइडियली आना चाहिए, बट कई बार 12 का कोई रिवर्सल अगर हमने 4A5 में कर दिया है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो जब मैं 12 और 13 कराऊंगा, इफेक्टिवली 12-13 का जो पोजीशन आनी चाहिए, 13 अप्रोप्रिएट होना चाहिए 6A1 से इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर केस। ठीक है, तो अभी हमने 8D तक टेबल समझ ली। उसके बाद जो टेबल 8 हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट टेबल एक और इन्होंने इंसर्ट करा इंपोर्ट के रिलेटेड। अब इंपोर्ट में क्या होता था कि हम इंपोर्ट ड्यूटी तो पहले पे कर देते थे, कई बार बिल ऑफ एंट्री बाद में आती थी तो हम क्रेडिट बाद में लेते थे। तो इसके अंदर चैलेंज क्या आता था हमारा कि जो ऑटो पॉपुलेटेड टेबल्स थी 8 की, वो पूरा का पूरा क्रेडिट या तो उस साल ही दिलाती थी, नहीं तो उसको रिवर्स में कर देती। अब इन्होंने उसी के कंटेक्स्ट में एक नया टेबल इंसर्ट कर दिया है विच दे से टेबल 8H1। 8H1 में क्या बताना है, IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लेके जाएंगे करंट ईयर का इंपोर्ट का। हाउएवर पेमेंट हमारी पहले ही हो चुकी है, बट क्योंकि गुड्स बाद में रिसीव हुए थे तो क्रेडिट हम कब लेंगे, जिस पीरियड में हमें गुड्स रिसीव। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेबल्स जो हमें समझनी है, जिसको हम स्पिल ओवर भी कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि करंट ईयर की रिपोर्टिंग अगर नेक्स्ट ईयर में होती है तो क्या है। तो फर्स्ट टेबल क्या है, टेबल नंबर 12। आप अपनी उसमें लिख लें नोटबुक में, टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 क्या कहती है, करंट ईयर का ITC, अज्यूमिंग 24-25 का ITC जो मैंने रिवर्स किया 25-26 में, मतलब टिल दी स्पेसिफाइड पीरियड। अवेल करा कब था, 24-25 में, बट उसकी रिवर्सल कब करी मैंने, स्पेसिफाइड पीरियड तक। तो टेबल नंबर 12 टॉक्स अबाउट द रिवर्सल ऑफ ITC। टेबल नंबर 13
ऑफ एनुअल रिटर्न इट सेज जो मेरा आईटीसी इस साल नहीं लिया, जो मैं नेक्स्ट ईयर लूंगा, उसको कहां रिपोर्ट करना है? टेबल नंबर 13 के अंदर। अब एक सवाल ये आएगा, 8C इक्विवेलेंट टू टेबल नंबर 13, या टेबल 13 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8C? ये दो तीन सवाल ऐसे आएंगे कि 13 में आना क्या है। 13 में वो सारा क्रेडिट पहली बात, इसमें नॉर्मल क्रेडिट भी आता है और आरसीएम का क्रेडिट भी आता है टेबल नंबर 13 के अंदर। ठीक है, अब आप मेरे को ये समझाओ कि जो टेबल नंबर 13 के अंदर, क्या वो वाला क्रेडिट भी आएगा जो मैंने करंट ईयर में नॉर्मल क्रेडिट अवेल किया और रिवर्स कर दिया? रिवर्स क्यों किया? ऑन अकाउंट ऑफ द कंडीशन मैंने मार्च 25 में एक क्रेडिट लिया, बट क्योंकि उसके गुड्स मेरे को अप्रैल में आए थे, 3B में जब मैंने फाइल किया तो 4A5 में ऑटो पॉपुलेटेड आया, मैंने उसको 4A5 में रिपोर्ट कर दिया और टेम्पररी रिवर्स कर दिया 4B2 के अंदर, ऑन दी ग्राउंड कि वो क्रेडिट मेरे पास अभी एलिजिबल नहीं है। अब ये क्रेडिट मैं ले कब रहा हूं? नेक्स्ट ईयर। तो चैट बॉक्स में मुझे बस ये बताओ, ये वाला क्रेडिट जो मैंने 3B में रिपोर्ट करा बट एलिजिबल नेक्स्ट ईयर हुआ, क्या ये टेबल नंबर 8C का और टेबल नंबर 13 का, पहले बताओ 8C का पार्ट बनेगा क्या ये? आई एम अगेन रिपीटिंग, नॉर्मल क्रेडिट अवेल्ड हुआ, रिवर्स्ड हुआ। रिवर्स किस लिए हुआ? ये कंडीशन पे कि वो गुड्स मेरे को बाद में मिले, तो क्या 8C में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो अवेल हुआ, रिवर्स हुआ, तो वो टेबल नंबर 6B को हिट कर चुका था और टेबल नंबर 7H को हिट कर चुका था। तो वो वाला क्रेडिट जो मैंने अवेल किया और रिवर्स किया ड्यूरिंग द ईयर, वो 8C को हिट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है इसी क्रेडिट के बारे में, जो FAQ क्लियर कर रहा है इसी केस स्टडी को, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये वाला क्रेडिट टेबल 13 को हिट करेगा क्या? क्या ये क्रेडिट टेबल 13 को हिट करेगा? यस या नो? जब तक 5-10 यस या नो नहीं आएंगे मैं आगे नहीं चलूंगा, मैं भी थक गया हूं। अच्छा जी, यस। रीजन? नो। वेरी गुड। तो कोई इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैंने आपसे आईटीसी शुरुआत करी थी तो मैंने आईटीसी को दो हिस्सों में किसमें बंटवाया था? एक वो आईटीसी जिसकी शेल लाइफ कब तक की है? 30 नवंबर तक की, और एक क्रेडिट वो था जिसकी शेल लाइफ क्या है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के जैसे। तो उस क्रेडिट की शेल लाइफ क्या है? जो मैंने आज गुड्स रिसीव मेरे को कब हुए? अप्रैल में हुए, या इनवॉइस बाद में रिसीव हुआ, उसकी शेल लाइफ कब तक की है? उसकी शेल लाइफ है 30 नवंबर तक की। तो अदर देन 37A के रिवर्सल की वजह से कोई क्रेडिट मैं नेक्स्ट ईयर अगर ले रहा हूं, उसको मुझे कहां रिपोर्ट करना है? टेबल नंबर 13 के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, टेबल 13 में वही क्रेडिट फ्लोट होगा जो क्रेडिट आप स्पेसिफाइड पीरियड तक ले सकते हो। और एक नोशन ये भी चेंज करना पड़ेगा हमें कि 13 में तो लिख दिया बट 8C में नहीं है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो 13 में होगा वो 8C में होगा ही होगा। ये डिपेंड करता है आपके रिपोर्टिंग पे। अब इसी केस स्टडी को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लाइंट ने ये किया था कि जिसमें उसने 4A5 मार्च की हिट करी और रिवर्सल दिखाया और ये कहा कि क्योंकि मेरे पास इनवॉइस नहीं आया था, गुड्स नहीं आए थे, तो मैं इसे नेक्स्ट ईयर करूंगा। दूसरा क्लाइंट वो था जो 3B कैसे फाइल करता था, वो ये कहता है कि जो क्रेडिट उसी को लूंगा जिसका इनवॉइस होगा, गुड्स होंगे, उसी टाइम लूंगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, जब मार्च की 3B फाइल करी, उसने इस क्रेडिट को पेंडिंग में डाल दिया। डाल सकता है?
उसने इस क्रेडिट को पेंडिंग में डाल दिया। तो जैसे ही उसने, सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, दो बिजनेसमैन है और दोनों के कंसल्टेंट अलग हैं। एक कंसल्टेंट कहता है मैं 4A5 को लेके 4B2 करूंगा, एक कंसल्टेंट कहता है सिंस द कंडीशन हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड मैं इसको पेंडिंग में छोड़ दूंगा। तो उस कंसल्टेंट ने, जिसने इस क्रेडिट को पेंडिंग में छोड़ा, क्या उसको 8C रिपोर्ट करना होगा? यस या नो? अगेन रिपीटिंग, ट्रांजेक्शन नेचर सेम है। एक कंसल्टेंट ने उसे पेंडिंग में रख लिया, एक ने 4A5 और 4B2 को हिट करा। तो जिसने उस ट्रांजेक्शन को पेंडिंग में छोड़ा है वाइल रिपोर्टिंग GSTR 3B, उस क्रेडिट को आपको 8C में भी डालना है और टेबल नंबर 13 में भी डालना। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि ट्रांजेक्शन का नेचर सेम है। मिस्टर एक्स कंसल्टेंट की रिपोर्टिंग अलग आ रही है उस नेचर में, और मिस्टर वाई की अलग आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने वाइल फाइलिंग द GSTR 3B दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट अप्रोच, और वो दोनों अप्रोच अपनी जगह सही है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई कि कब मुझे टेबल 13 में डालना है और कब मेरे को 8C में रिपोर्ट करना है। अब एक और केस स्टडी मैं आप लोगों से पूछता हूं। ये तो अभी मैंने आपसे बात करी उस क्रेडिट की जो क्रेडिट मेरा नॉर्मल था, उसकी रिपोर्टिंग। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रिक्लेम्ड क्रेडिट की। मार्च के अंदर अज्यूम करते हैं, हम एक सिनेरियो ये क्रिएट करते हैं, मैंने अप्रैल 2024 में क्रेडिट लिया, उसकी पेमेंट मैंने 180 डेज में नहीं करी। आई एम डिस्कसिंग दी अनदर FAQ पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग, I have availed the credit in 24-25. However, I have not made the payment within 180 days और उसको रिवर्स कर लिया। क्लियर? और उस क्रेडिट को मैंने अवेल किया है 25-26 में जाके। कर सकता हूं? ठीक है। तो मैं अब आप लोगों से एक शीट में आपके सामने खोल रहा हूं। ये शीट आपको दिख रही है? शीट आपको दिख रही है क्या? चैट बॉक्स में यस या नो कर दीजिए बस। यस मोहित जी, यस मोहित जी। अब इस शीट की ब्यूटी क्या है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है? मैंने आपको बोला 4A5, 4B1, 4B2, इस तरीके से मैंने ITC की सारी टेबलें यहां पर खड़ी कर दी है जो 9 और 3B के अंदर मेरे को एम्फसाइज हुई। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा अभी कि वो स्पेशल क्रेडिट जो मैंने रिवर्स किया था ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट विद इन 180 डेज, उसकी रिपोर्टिंग मैं 9 में क्या करूंगा? वो 6A के अंदर उठ के आएगा, 100 रुपीज का क्रेडिट है अज्यूम करते हैं। क्या वो क्रेडिट आप टेबल नंबर 13 में दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? यस या नो? नो। बट मैं अवेल तो उसे नेक्स्ट ईयर कर ही रहा हूं, उसको मैं टेबल नंबर 13 में नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट का नेचर क्या है? रिक्लेम्ड क्रेडिट, जिसकी कोई शेल लाइफ है। आंसर इज नो। और वो ITC कौन से साल का माना जाएगा? उस साल का जिस साल उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो कॉपी में आपको समझना क्या है, जो आपको सबसे बड़े चैलेंजिंग पॉइंट आएंगे वाइल रिपोर्टिंग GSTR 9, सबसे पहला काम आपने ये समझना है रिवर्सल का नेचर क्या है। क्या ये रिवर्सल 37 की वजह से हुआ है या 37A की वजह से हुआ है? फर्स्ट।
अगर वो 37 और 37A की वजह से हुआ है तो वो टेबल नंबर 13 का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर वो रिवर्सल अदर देन 37 ए का हुआ है तो वो टेबल 13 का पार्ट बनेगा। और उस रिवर्सल को या उस क्रेडिट को अगर हम समझेंगे तो हमें पहले ही डिस्टिंग्विश कर लेना है। जो एनुअल 3 भी आएगी उसके बेस पे हमें पहले ही डिस्टिंग्विश कर लेना है। अब आप लोगों को एक्सेल शीट दिख रही है। एक्सेल शीट क्या कहती है, एक तरफ सारे के सारे मैंने टेबल्स डाल दिए। ये आप एक्सेल शीट मैं शेयर कर दूंगा सुमित जी के साथ। वो जब पीपीटी शेयर करेंगे तो उसके साथ शेयर भी कर देंगे और पीपीटी भी शेयर कर देंगे। पीपीटी ऑलमोस्ट 150 पेज के आसपास की है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप रेफरेंस पॉइंट के लिए समझ लेना, एफएक्यू भी उसके अंदर गवर्न है। अभी हमने इंपॉर्टेंट एफएक्यू बातचीत में ही सब समझ ली। तो ये आपको अपने ऑफिस की बनानी है। अब आईटीसी रिलेटेड अगर किसी का सवाल है तो वो मैं ले लेता हूं। और उसके साथ साथ ये एक शीट तो ये आपकी होमवर्क है, इसमें आप अलग अलग केस स्टडी अपने हिसाब से बनाते रहना जैसा जो मन करे। मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि एज ए ओनर, एज ए प्रोप्राइटर, एज ए पार्टनर, जो भी बंदा ये देख रहा है ये पहले खुद अपने हिसाब से समझ ले कि पर्टिकुलर केस में कौन सा रिपोर्टिंग टेबल है। अगर वो अपनी लाइफ के 2-3 घंटे 4 घंटे इसमें लगा लेगा तो उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। रीजन इसका क्या है, अभी जैसे हमने देखा 9 की ब्यूटी क्या है या जीएसटी की ब्यूटी क्या है कि कई बार हमने देखा है कि एक ही ट्रांजेक्शन थी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम थी बट रिपोर्टिंग अलग हो गई। उसका फर्क फैक्टर क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि मैंने 3B में जैसे रिपोर्ट किया है उसकी वजह से 9 की रिपोर्टिंग चेंज हो जाएगी। अब एक करण जी का क्वेश्चन है, सर 6H में कौन सा रिक्लेम्ड आएगा जो रिक्लेम हुआ है किसी भी साल का, या कौन सा आएगा। तो पहली बात तो मैं आपको फिर से बता दूं, 6H को मैंने आपको क्या लिखवाया था, रिक्लेम्ड आईटीसी। रिक्लेम्ड आईटीसी चाहे वो करंट ईयर का हो चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, किसी भी साल का हो, कोई मटेरियल फैक्टर नहीं है उसके अंदर। चाहे वो 180 डेज का हो, किसी भी वजह से हो रहा हो, तो उन सारे केसेस में हमें क्या ध्यान रखना है, 6H को यूज करना है। अब जो इंपॉर्टेंट आपने, जो मैंने आपको टेबलें लिखवाई थी उसमें एक जगह आप लिख लो, जहां टेबल नंबर 8B लिखा था ना उसमें लिखिए 6B आपने लिखा हुआ था, उसमें प्लस करें 6H। क्या करेंगे, 6H, और उसको क्रॉस कर दें, प्लस करके माइनस कर दें, उसको क्रॉस कर दें। लास्ट ईयर तक 6H को लेता था 8B, जिसकी वजह से मिसमैच खड़े हो जाते थे। लास्ट ईयर तक क्या करता था वो, रिक्लेम्ड वाले को भी ले लेता था और कहता था उसको ढूंढो, वो मिलेगा कहां से। तो जो नया एफएक्यू, नई एनुअल रिटर्न जो आई है उसमें 8B में जो अमेंडमेंट आया है वो क्या किया उन्होंने, 6B माइनस 6H, मतलब 6H को जो पहले ऐड हुआ हुआ था उस 6H को हटा दिया। इज इट अ वेलकम स्टेप, यस या नो करके बताओ। अब 6H हटते के साथ ही तुम्हारा क्या होगा सिचुएशन, वो टेबलें मिलेगी। क्लियर। अब मैं एक शीट और खोल रहा हूं आपके लिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। ये सुमित जी आपके साथ शेयर कर देंगे। मैंने क्रेडिट, अब मेरी एक्सेल शीट दिख रही है दूसरी वाली जी जिसके मुझे। अंदर, बस यस या नो कर दो। अच्छा सुमित जी आप हो तो अच्छी बात है, आप बता दीजिएगा बस, यस क्योंकि यस आई एम मेरे देयर को सर। दिखता नहीं है उसके अंदर। यस आई एम देयर सर। तो मैंने क्रेडिट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक करंट ईयर में बांटा और एक प्रीवियस ईयर में बांटा। क्रेडिट कहां कहां है, एक बुक में है, एक जीएसटीआर 3B में है, एक जीएसटीआर 2B में है। ये तीन इसके फील्ड्स हैं। तो इसमें हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनाने की कोशिश करी है, सबसे पहले हमने एक जगह फ्रीजिंग करा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। उसके बाद हमने उसको चेक किया क्या ये बुक्स में करंट ईयर के हैं या प्रीवियस ईयर की बुक्स में है। 3B में मैंने कब लिया, करंट ईयर लिया या प्रीवियस ईयर लिया। 2B में वो कब आया, करंट ईयर आया है या प्रीवियस ईयर।
वो सारी सिचुएशंस को एम्फसाइज करके उसकी रिस्पेक्टिव टेबल की रिपोर्टिंग के अंदर हमने फिल इन कर दिया। इसमें रिक्वेस्ट क्या है, ये मेरी अपनी समझ है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आपने अपने हिसाब से, अपनी ऑफिस के हिसाब से आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है। एक बार अगर आपने फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, उसके बाद जो भी आपके यहाँ जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है उसको ये पूछना है कौन से केस स्टडी में है, वो केस स्टडी वो पिक करेगा और उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव टेबल में रिपोर्ट कर दे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और टेबलों में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं आईटीसी के रिलेटेड। तो हमारे हिमांग सिंगला जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनको थोड़ा सा जगाया जाए, और आप एक बार चैट बॉक्स में देखो क्योंकि आप देख पा रहे हो ज्यादा। सर मैं देख पा रहा हूँ, एक तो मेरी क्वेरी दो है पांच सर। मिनट का मैं भी ब्रेक ले लेता हूं इसी बहाने। मैंने अभी क्या कर लिया, आईटीसी इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट इंक्लूडिंग योर एफएक्यू। यही सब कुछ एफएक्यू में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको स्टोरी फॉर्म में समझा दिया है। एफएक्यू भी शेयर कर देंगे, पीपीटी भी शेयर कर देंगे, एक्सेल शीट भी शेयर कर देंगे। अब आप जो आईटीसी रिलेटेड है, कैन यू प्लीज शेयर दिस एक्सेल शीट इन चैट बॉक्स? अगर हो जाती है तो मैं कर देता हूं अभी। सर अभी तो नहीं हो पाएगी, या ठीक वो तो है, बात हो पाएगी। गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर दूंगा मैं सभी पार्टिसिपेंट को थ्रू ठीक है, मेल ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप। तो अभी इनके सवाल ले लेते हैं, सर थोड़ा रेस्ट मैं भी हो पहले जाएगा। मैं पहले अपनी क्वेरी ले लूँ एक। अच्छा, ये होता है फायदा कोऑर्डिनेटर बनने का। अगली बार मैं सुमित जी को बोलूंगा इसका भी वो निकाल दें एंट्रेंस टेस्ट, कि जी। कासा में कोऑर्डिनेटर बनना है तो ये चीजें पास करनी होगी। वेरी गुड सर। हाँ जी, हिमांशु जी पूछे। सर एक एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने लास्ट ईयर जो जीएसटीआर 3B है फॉर एग्जांपल, उन्होंने 100 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया उसमें 3B में, लेकिन बुक्स में आईटीसी था ओनली 95 रुपीज हम्म। पूरे साल में। तो ना हम्म। 5 रुपीज एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है। वो उनका पता लगा जब उनका ऑडिट हुआ इनकम टैक्स वाला सितंबर में। हम्म। तब हमने उसको DRC 03 से रिवर्स कर दिया। हम्म। तो उसको सिक्स, जो अब जो मेरा सिक्स, टेबल 6 है, वहां तो 4A 5 से ग्रॉस आईटीसी 100 आएगा ऑब्वियसली। हम्म। और सर मैं 6B में मैं 100 को बाइफरकेट करूंगा या 95 को बाइफरकेट करूंगा? हाउस से पूछते हैं। ओके। सर आई एम नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप, कैन यू शेयर इट हेयर? मिल जाएगा कृष्णा जी, आपको मिल जाएगा। सुमित जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो हिमांग जी का सवाल क्या है, हिमांग जी कह रहे हैं कि मेरी बुक्स में आईटीसी है 0। हम्म। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने 3B में 100 रुपीज का आईटीसी ले लिया। हाँ जी। अब ये उसकी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो 6A में ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। यस सर। 6B में कुछ ये फिल करेंगे, यस या नो? जो बाकी इस सवाल का लाभ उठाना चाहें, यस या नो तो कर लें, इधर नंबर भी नहीं कटने। आई एम अगेन रिपीटिंग कि एक क्रेडिट जो बुक्स में था ही नहीं कभी भी, वो 6A में इन्होंने 3B में ले लिया, 6A में उठ के आ गया, तो 6B में रिपोर्ट करना है या नहीं करना? दो ही है, मतलब तीसरा है ही नहीं। अभी तो हमने बस ये पूछा रिपोर्ट करना है नहीं करना, नो नो यस यस। तो आइडियली आंसर वुड बी नो। नो रीजन क्या है कि जब कोई चीज बुक्स में ही नहीं है उसकी रिपोर्टिंग का सवाल नहीं उठता। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्योंकि आगे वाले सवाल पे भी चले गए लोग कि भैया DRC 03 या क्या है। अब इससे क्या सिचुएशन खड़ी होगी तुम्हारी, कि तुम्हारा 6 से 100 से आएगा, हाँ जी। और 6J इंपॉर्टेंट यस। टेबल क्या है, 6J जो मैंने कहा था आइडियली इट शुड बी 0, हाँ वो क्या जी। दिखाई देगा, 100। तो वो माइनस में आएगा ना? माइनस में आएगा ना 100। हाँ जी, हाँ जी। और जब उसका नोटिस आएगा तो हाँ आप जी। अपना DRC 03 उनको प्रोड्यूस कर देना। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने DRC 03 जमा करा देना, और ये लिखते हुए टेबल 6J में द क्रेडिट विच हैज बीन रिपोर्टेड इट इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस अवेलमेंट। ठीक है। ये करने से फायदा क्या होगा आपका, आपके नेक्स्ट ईयर की एनुअल रिटर्न डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ जी सर, वो इशू है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसको रिवर्सल दिखाते टेबल नंबर 12 में, जो मैं सजेस्ट नहीं करता। टेबल 12 में कैसे दिखा सकते थे आप?
आप कहते हैं कि भाई मैंने इसको नेक्स्ट ईयर 3B में रिवर्स कर दिया, तो अगर वो, क्योंकि अभी तो आपने बताया नहीं करा, तो वो स्टैंड में क्या होता है कि जब आप कहते हैं मैंने आगे नेक्स्ट ईयर में रिवर्स कर दिया, तो जब उसका शोकॉज नोटिस आता आपके पास, तो ऑफिसर आपसे ये पूछता मुझे ये बताओ आपने किस महीने में ये रिवर्सल किया। ठीक है सर। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफेंडिंग पोजीशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो बेटर ये रहेगा गो विद DRC 03 सर एंड हम शो इट इन टेबल 6J नेगेटिव। ठीक सर है। यस सर। GST 9 give last opportunity to correct mistake committed in 3B। सर ये एक अद्भुत फॉर्म है जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो देना है वो दे देना, लेने की बात मत करना। फंडामेंटली तो वो क्या कहता है कि भाई अगर कोई लाइबिलिटी आपकी बनती है वो आप डिस्चार्ज कर सकते हो GST 9 के माध्यम से, बट ITC जो भी लेना होता है वो 3B के थ्रू ही लेना होता है। हाउएवर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आ रही हैं जो कहती है ठीक है अगर सिर्फ मेयरली रिपोर्टिंग की वजह से या नॉन अवेलमेंट की वजह से अगर 9 में भी दिखा दिया है तो ले सकते हो, बट वो बहुत डिफिकल्ट है टू डिफेंड इट आउट। तो आपके सवाल का आज की डेट में जवाब ये होगा कि भाई 9 के माध्यम से मेरे हिसाब से GS क्रेडिट आपको मिलना डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन और लूँ जो आ रखे हैं हाँ, चैट बॉक्स में। तो ले लो ना। सर एक क्वेश्चन आ रखा है सौरभ जी का। सर एज एक्सप्लेन्ड बाय योर गुड सेल्फ, क्रेडिट इन 8B will flow from 6B. However, 6B is gross ITC. Suppose if there is a credit note reversal, it gets reported in 7H1. Table 8A auto populated will include the ITC net of credit note. सर मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख दूं चैट बॉक्स में ताकि पढ़ना आपको। हाँ, वो दिख भी जाएगा और तुम्हारी भी मेहनत हो जाएगी। मैं अब इस केस स्टडी को समझा देता हूँ। सर मैंने जिसने भी, लिख दिया चैट बॉक्स में। हाँ जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है उसमें। अब जो क्रेडिट नोट हैं, अब क्रेडिट नोट के रिवर्सल हमारे दो तरीके के हैं, तभी मैंने कहा था रिवर्सल को समझना जरूरी है। एक क्रेडिट नोट जो मेरे 2B को हिट करता है, एक क्रेडिट नोट जो मेरे 2B को हिट करता है वो क्या करता है, मेरा 4A 5 ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल, मेरे यहां से मैंने परचेज रिटर्न करी हाँ इन द जी। मंथ ऑफ जनवरी, तो मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिट उसको उस महीने ही घटा दिया, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न कर दी तो मुझे क्रेडिट नोट घटाना है। हाउएवर मेरे वेंडर ने उसको रिपोर्ट नहीं करा, तो अगर वो सिचुएशंस बैठेगा तो अगेन अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे उसकी GST 3B समझनी पड़ेगी बिफोर डिस्कसिंग कि भाई मेरे को 9 में कैसे रिपोर्ट करना है। अगर मैंने अपनी GST 3B में 4A 5 को अगर घटाया है और वो 2B में भी घटा हुआ है तो देर विल नॉट बी एनी मिसमैच। बट अगर मैंने रिवर्सल में क्या किया, मैंने अगर रिवर्सल के टाइम में जब 3B भरी थी, अगर मैंने वहां पे 4B 2 को हिट करा है, तो चैलेंज क्या होगा, मेरा ITC मिसमैच आ जाएगा। रीजन बीइंग मेरे 2B में कम है, 2B में क्या आ रहा है नेट, और जो मेरी ग्रॉस फिगर है, क्योंकि 4A 5 में जब मैं फाइल करूंगा तो वो कहां जाएगा 6A के अंदर। अब क्योंकि मैंने रिवर्सल 4A 5 में से कम नहीं करा था, उसकी वजह से 4A 5 क्या इन्फ्लेटेड, तो देयर बाई इट वुड क्रिएट अ डिफरेंस इन टेबल नंबर 8D। आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आपने यही देखना है कि आपने जो रिवर्सल किया है वो कैसे किया। एक जनाब ने हैंड रेस किया हुआ है, NSA RJ। इनको सुमित सर ही कर पाएंगे सर। एक तो है अभिनव जी, आर यू टेकिंग ऑडियो Q&A? हम एक आधा ले लेते हैं। अब मोहित क्या? जी, ऑडियो Q&A लास्ट में ही ले पाएंगे, अदरवाइज ठीक है, टॉपिक विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है क्योंकि जी, मैनी तो ये पार्टिसिपेंट हमारा हैं। ITC का एक आधा सवाल। सॉरी, क्रेडिट नोट 25 26 5 दिन मार्च 3B। ठीक है। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, ये ITC के रिलेटेड तो नहीं है अभी। सर एक और क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ, एक कल ITC और ले लो, फिर हम OTL 15 मिनट में और कंप्लीट कर देंगे, फिर हाउस ओपन कर हाँ, देंगे। उसके बाद हाउस ओपन कर देंगे। और एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि मैं व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक, लिंक्डइन, मेल के थ्रू भी लिंक शेयर करूँगा। सो इसलिए उसको क्वेश्चन में बार बार ना डालें कि ये कैसे मुझे मिलेगा।
डेफिनेटली इसे लार्जर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक गूगल ड्राइव के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। ओवर टू यू मोहित जी। सर एक क्वेश्चन है करण नागपाल जी का, लास्ट क्वेश्चन आईटीसी वाला। हाँ जी। 6H टेबल में कौन सा रिक्लेम्ड आईटीसी आएगा? कोई जो आईटीसी रिक्लेम हुआ है किसी भी साल का? मैंने वो बता दिया था सर जवाब ना। ठीक है। 6H में रिक्लेम कोई भी हो, करंट ईयर का हो वो भी आ जाएगा और प्रीवियस ईयर का हो वो भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, आईटीसी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी के बेसिस पे हमें 9C में भी आईटीसी को रिपोर्ट करना होता है। तो 9C में हमारे होते हैं टेबल नंबर 12। जो स्टार्ट करता है वो कहता है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो क्रेडिट जो मैंने अवेल किया है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट हैज टू बी रिपोर्टेड देयर। उसके बाद वो मेरे को बोलता है प्रीवियस ईयर का आईटीसी जो मैंने करंट ईयर में लिया है वो बता दो। देन वो मेरे से सब्ट्रैक्ट कराता है करंट ईयर का आईटीसी जो मैंने नेक्स्ट ईयर लिया, और यहां से वो टेबल नंबर एनुअल रिटर्न की 7J से मेरे को एक क्रेडिट फ्लोट करके फिगर भेजता है, जिसमें वो मुझे बोलता है कि द आईटीसी विच वॉज रिपोर्टेड इन योर एनुअल रिटर्न। तो वो जो क्रेडिट है, आप जब टेबल नंबर 12 फाइल करेंगे, जो अभी तक हमने देखा है, उसमें आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का अनरिकंसाइल्ड आईटीसी दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर। नीचे अनरिकंसाइल्ड में आप अपना रिकंसिलेशन में रीजन दे दीजिए। सिमिलर सिचुएशन आपकी 14 के अंदर होगी। 12 इज मैंडेटरी टेबल। आई एम रिपीटिंग, टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 9C इज मैंडेटरी टेबल। टेबल नंबर 14 ऑफ जीएसटीआर 9C इज एन ऑप्शनल टेबल। तो जो मैं पीपीटी जो सुमित जी आपसे शेयर करेंगे उसमें एक सेक्शन है ऑप्शनल टेबल्स का भी, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। So with this, my ITC perspective is complete. Now I am moving towards the आई अब हम एक साथ ही ले लेंगे क्योंकि सुमित जी कह रहे हैं एक बार 15 मिनट और होती है, यस क्योंकि मोहित जी, आउटवर्ड पहले टैक्स टॉपिक लायबिलिटी कवर में, कर लेते हैं, दैट हाँ, विल बी बेटर। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्योंकि ज्यादा हमारा टाइम लगेगा नहीं, और हम सबने पहले ही बोल दिया था हम चैंपियन हो चुके हैं उसमें। तो 15 मिनट में हम कोशिश करते हैं इसको रैप अप करने के लिए। दीपाली जी आप क्वेरी टैग कर दीजिए, बेटर रहेगा यहाँ पर अभी फॉर द टाइम भी। ओवर टू यू मोहित भैया। तो जब हम आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी चेक करते हैं, हमारे पास आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के दो बकेट्स, एक है टैक्सेबल और एक है एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट की जितनी भी है या जो ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट के अंदर हम क्या क्या और भी बता सकते हैं। प्लीज आंसर माई क्वेरी, आई हैव आस्क्ड 3 टाइम्स। एक बार अनुज जी की क्वेरी ले लेते हैं, नाराज ना हो जाएंगे। नहीं, ठीक है। नाराज नहीं होना चाहिए अनुज जी। और मैं जो क्वेरी रह गई हैं सबको अलाउ करूंगा लास्ट में, एक एक क्वेरी सबकी हाँ, हम तो फिर आप थोड़ी देर संभालो, मैं जब तक यस सेमिनार यस संभाल रहा यस हूँ। यस, प्लीज प्लीज अनुज जी प्लीज। नाराज ना हो, हम आगे क्वेरी लेके ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा कहीं पे हाँ भी। बिल्कुल सर, क्वेरी नहीं श्योर है सर इनकी। श्योर सर। ठीक है। चैट। गो तो ऑन। मेरी आउटवर्ड सप्लाई के दो हिस्सों में, एक जिसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है और एक जिसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टैक्स का किसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक तो वो जो पर से एग्जेम्प्ट हो गई उसमें टैक्स का नहीं आता, और एक इफ आई एम मेकिंग अ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उन दोनों की जो सिचुएशंस है वो उन्होंने कहा कि भाई टैक्स नहीं है तो सारी की सारी आप रिपोर्टिंग कहाँ करोगे, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में मेजर टेबल्स जो हैं उसकी जो इनसाइड टेबल्स हैं वो ऑप्शनल्स हैं। उसमें वो कहते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमें कोई जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी फिगर डाल दो, चाहे आपने करंट ईयर में रिपोर्ट किया हो चाहे नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट किया हो, तो वो टेबल नंबर 5 में डाल दो। टेबल नंबर 5 में एक जो मैंडेट फील्ड है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन जीएसटी सप्लाई। अगर आपने कोई नॉन जीएसटी सप्लाई करी है तो वो कहते हैं अलग से रिपोर्ट करोगे। एग्जेम्प्ट और नील रेटेड अगर कोई सप्लाई है उसको आप एग्जेम्प्ट में क्लब करके डाल सकते। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज सप्लाई जिसपे टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी सप्लाईज जो हमारी टैक्सेबल है, जिसपे टैक्स का इंपैक्ट। तो अगेन जो आपने कॉपी पेन अपना यूज किया था, एक बार फिर से आपको पेन यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाए। सिर्फ रेलिवेंट टेबल की बात कर रहा हूं, उसकी अंदर की डिस्टिंग डिस्कशंस नहीं करूंगा, अदरवाइज वो एट लेंथ लंबा हो जाएगा। आप लिखेंगे टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 9। तो
इसमें हम एक बार काम करते हैं, जितने भी आउटवर्ड टेबल्स हैं वो मैं लिखवा देता हूं आपको। एक टेबल नंबर 4 लिखेंगे, एक टेबल नंबर 10 लिखेंगे, एक टेबल नंबर 11 लिखेंगे ऑफ जीएसटीआर 9। एंड टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी? 4, 10, 11 और 9। और एक टेबल नंबर 14 और लिख लीजिए। तो जब भी हम आउटवर्ड सप्लाई की रिकंसिलिएशन बनाने जाएंगे तो हमें तीन सिचुएशंस आएंगी। एक, इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख लें, दैट वुड बी गुड फॉर यू। द मोस्ट ऑप्टिमम इक्वेशन क्या आएगी? टैक्स पेबल इक्विवेलेंट टू टैक्स पेड। यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, टैक्स पेबल ग्रेटर देन टैक्स पेड। जो हम स्कूल में यूज करते थे ना, एरो वाले साइन, ग्रेटर देन लेसर देन वाले, वो आप यूज कर सकते हो। अगर टैक्स पेबल इज ग्रेटर देन टैक्स पेड तो उसके आगे आप लिख लें DRC 03। देन टैक्स पेबल लेसर देन टैक्स पेड। तो इफेक्टिवली तीन सिचुएशंस ही आएंगी आपके पास जब आप आउटवर्ड टैक्स की रिकंसिलिएशन करने बैठोगे। अब हमें क्या समझना है कि एक बिजनेसमैन के या रजिस्टर्ड पर्सन की लाइफ में ट्रांजैक्शन क्या होगी। जब हमने उसकी ऑडिट करी या रिकंसिलिएशन बनाया तो हमने देखा कि उसने एक टैक्सेबल सप्लाई करी, उसका टैक्स पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर। मेड टैक्सेबल सप्लाई एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको हमें कहां दिखेगा? वो एक तो दिखेगा टेबल नंबर 4 के अंदर, जिसमें हम फिगर डालेंगे भाई इसने इतनी सप्लाई करी। और एक ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगा टैक्स पेड का टेबल नंबर 9 में। तो टेबल 4 का टैक्स पेबल वुड रिकंसाइल विद टेबल नंबर 9 का टैक्स पेड। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी कि आज हमने जब जीएसटीआर 9 उसकी ऑडिट करी तब हमने कहा भाई साहब आपने ये वाली टैक्स का टैक्स पेबल जो है ये आपने पे नहीं करा। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई कि जब आपने दिसंबर में किसी की GST 9 करी तब आपने बोला कि ये वाली टैक्सेबल सप्लाई जो था उसका टैक्स आपने पे नहीं करा। तो उसको कौन सी टेबल में रिपोर्ट करना होगा? हमें टेबल नंबर 4 में। हम टेबल नंबर 4 में उसे रिपोर्ट करेंगे क्योंकि उसका टैक्स पे आज तक नहीं हुआ, और टेबल नंबर 9 में वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मेरा टेबल नंबर 9 क्या बोलेगा कि जो पेबल है वो ज्यादा है पेड से। ठीक है, एफएक्यू में नाउ दे हैव इंसर्टेड वन मोर टेबल, अनदर इंपॉर्टेंट एफएक्यू। एफएक्यू को टच जब कर रहे हैं, ओटीएल के रिलेटेड एफएक्यू में क्या आया? दे हैव इंसर्टेड अ कॉलम इन द टेबल नंबर 9 जहां पे उन्होंने टैक्स पेबल माइनस टैक्स पेड करा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मेरा टैक्स पेबल ज्यादा है टैक्स पेड के मुकाबले। तो टैक्स पेबल माइनस टैक्स पेड में क्या होगा? DRC 03। क्लियर है? नाउ द थर्ड सिचुएशन कम्स इन कि मेरा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 देयर वाज अ टैक्स पेबल जिसकी रिपोर्टिंग ही मैंने 25-26 में करी, बट बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या होगा कि वो टैक्स घट भी सकता है, वो टैक्स बढ़ भी सकता है। मतलब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो मुझे कौन सी टेबल चूज करनी है? टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जब टैक्स बढ़ाना है तो टेबल नंबर 10, अगर टैक्स घटाना है तो टेबल नंबर 11। और 10 और 11 का जो इफेक्ट है, मतलब प्लस माइनस का जो इफेक्ट है, वो कहां जाएगा? हमारा टेबल नंबर 14 के अंदर। इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जब वो शोकोज नोटिस आएगा
शोकोज नोटिस ये आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप ये बताओ कि जो टेबल नंबर 14 में आपने पे किया है टैक्स, वो मैं कैसे सही मान लूं। यही शोकोज नोटिस चल रहा है, क्योंकि कोई ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो है नहीं जब हम 3B फाइल करें कि वहां पे दिखा दें। अब अमेंडमेंट आ गया जिसमें वो पूछता है भाई किस पीरियड का है, तो उस टाइम आप ध्यान रखें कि आप मेक श्योर करें कि जो उस महीने की GSTR 1 और उस महीने का जो GSTR 3B है वो बराबर हो, और अगर उससे ज्यादा पे हो रहा है वो इक्विवेलेंट टू टेबल नंबर 14 हो जाए। क्योंकि पर्टिकुलर मंथ में वो जाके ये हमेशा आपसे सवाल पूछता है, मैं कैसे मानूं कि आपने ये जमा कराया। और वो जो डिफरेंस आना चाहिए वो टिल द स्पेसिफाइड पीरियड ही आना चाहिए। अज्यूमिंग मैंने लास्ट ईयर का 10 लाख रुपए टैक्स जमा नहीं कराया, बट मैंने लिखा उसे टेबल नंबर 10 के अंदर ये कहते हुए कि मैंने इसको स्पेसिफाइड पीरियड तक जमा करा दिया, तो मैंने भी आपकी बात सत्य मान ली और कहा कि आपने 3B में जमा करा दिया। और आपने टेबल नंबर 10 में डाल दिया, टेबल नंबर 14 में पेबल और पेड भी एडजस्ट कर दिया। आपके पास ASMT 10 का शोकोज नोटिस आता है, जिसमें वो ये पूछता है कि मेरे को आप एविडेंस प्रूफ दो इन विच मंथ GSTR 3B यू हैव पेड दी टैक्स। तो 3B में कोई अलग से तो नहीं दिखता कि प्रीवियस ईयर का क्या है, देन आप इसका रिप्लाई कैसे सबमिट करोगे। ये जो फैक्टर्स हैं, जो चैलेंजेस हमें ASMT 10 या शोकोज नोटिस के टाइम पे फेस होते हैं, उसको ध्यान रख के हमें 99C फाइल करनी है कि कल अगर वो हमसे ये सवाल पूछता है तो डू वी हैव दिस आंसर। और इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, जब जो कंपैरिजन चार्ट निकलता है, कंपैरिजन लायबिलिटी का जो टेबल डाउनलोड होता है हमारा फ्रॉम दी पोर्टल, उसमें मेक श्योर करेंगे कि 1 और 3B का जो डिफरेंस है इस साल में वो पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए। और वो जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट टू माई टेबल 14 आना चाहिए। इफ आंसर कम्स यस, देन इट कुड बी वन ऑफ द गुड ग्राउंड जो आपको मदद करेगा while डिफेंडिंग योर ASMT 10 और शोकोज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज केसेस जहां पर ये आपके पास आया है दैट यू हैव नॉट पेड दी लाइबल टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 9 हमारा आउटवर्ड से कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू 9C। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आई उठ के कि 9C में वो बोलता है ऑडिटेड टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जिस क्लाइंट का, जिस रजिस्टर्ड पर्सन का मल्टी स्टेट ऑपरेशन है, उस केस में व्हाट इज माय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्नओवर। एक वो जो कंसोलिडेट आ रहा है, क्या मुझे वो लिखना है या मुझे स्टेट लेवल का डिराइव करके लिखना है। चैट बॉक्स में यस या नो, स्टेट या कंसोलिडेट, एक दो आंसर लिखो ताकि फिर ऐसा लगे कि आप लोग हो। स्टेट, कंसोलिडेट, चलो दो ही आएंगे, कंसोलिडेट, स्टेट, कंसोलिडेटेड। सर यही दो आंसर आपने बोले थे लिखने के लिए। हाँ, दो में से एक बोला था ना। चलो, इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि कंसोलिडेटेड नहीं जाएगा। नो आइडिया सर, लो सर तीसरा आ गया। तीसरा आ गया सर। हाँ, नो आइडिया गेट आइडिया सर जी। तो इसके अंदर हम जब भी रिपोर्ट करेंगे वो स्टेट वाला रिपोर्ट करें, कंसोलिडेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स का कंसोलिडेशन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो आइडियली नॉक ऑफ हो जाता है ब्रांच ट्रांसफर, तो वो उसके अंदर कभी नहीं दिखेगा आपको। जब आपकी ऑडिट हो रही है, 9C बन रही है, वो स्टेट स्पेसिफिक बन रही है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम 9C फाइल कर रहे हैं बट प्रिपेयर ऑडिटेड स्टेटमेंट मे नॉट बी अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं भी होगी, सेपरेट ऑडिटेड स्टेटमेंट कभी किसी के पास नहीं होती है, उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप फाइनलाइजेशन करवा रहे हैं ना, उसी टाइम आप कोशिश करें, क्योंकि आज उस स्टेट का जब ऑफिसर आपकी ऑडिट करेगा वो कौन सी टर्नओवर पे करेगा। सपोज दिल्ली में ऑडिट चल रही है, दिल्ली की 9C आपने फाइल कर दी, तो दिल्ली की 9C में यूपी की टर्नओवर का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और अगर आप वहां पर कंसोलिडेट फिगर उसको डाल देते हो तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर, रीजन बीइंग मैं उस स्टेट के लिए कंटेक्स्ट में, बैलेंस शीट एक होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले वैट में कराते थे ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे, सिमिलर नेचर में मेरी एडवाइस ये होगी जब बैलेंस शीट फाइल बन रही है उसी टाइम ही आप ट्रायल बैलेंसेस को अलग अलग करके, और अगर पॉसिबल हो आज के दिन भी, तो ट्रायल रिलेटेड आप अपनी पोजीशंस ले लें, और वो ट्रायल की पोजीशंस या सेल एंड परचेज कम से कम जिस पे आपका वो है, वो एक पेपर बना के जब 9C फाइल करें तो अपलोड करें इफ इट इज पॉसिबल। उससे क्या होगा, क्योंकि अभी हमने पास्ट में जो शोकोस नोटिस देखे उसमें क्या हुआ, उसने मेरा क्या बोल दिया, उसने जो मैंने 9C के उसमें टर्नओवर डाला ना कंसोलिडेटेड, अगर इनकेस किसी ने डाला हुआ है तो वो पूरी टर्नओवर उसको मान लेता है, देन योर सिचुएशन वुड बी डिफिकल्ट टू डिफेंड। और दूसरी सिचुएशन ये होती है मैंने डाला स्टेट का टर्नओवर, बट जो डॉक्यूमेंट लगा है यस ऑडिटेड फाइनेंशियल आई हैव टू अपलोड, और अगर साइमल्टेनियसली मैं स्टेट की भी कोई पोजीशंस डाल देता हूं क्योंकि वो ले लेता है वहां पे, तो मेरा केस या जब मैं डिफेंड करने जाऊंगा वो हमेशा आपसे यही बोलता है मेरे को आप स्टेट के नंबर्स दो, वो कभी भी आपसे नहीं बोलता मुझे आप पूरे दुनिया जहां के दूसरी स्टेट्स के दो। तो मेरी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप जिस दिन अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते हैं मेक श्योर, क्योंकि अल्टीमेटली 9 9C जो आप भर भी रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेटर तरीके से अपनी शोकोज नोटिस डिपार्टमेंट से जो आता है ASMT 10 या DRC 01 हम उसे बेटर हैंडल कर पाए, ये ध्यान के रखते हुए हमें अपनी 9C फाइल करनी। तो एक तो चैलेंज हमने ये देखा, दूसरा चैलेंज उसमें क्या करना है, क्योंकि 9C का जो दूसरा पार्ट है वो भी अच्छा है, इट आस्क यू अबाउट दी टोटल सप्लाई को, वो टैक्सेस वाइज मांगता है आपसे कि 8%, 12% कितना है, 18% कितना है, 28 कितना है वहां पर, इंक्लूडिंग RCM, और उसको वो टैक्स पेड से माइनस कर लेता है, और उसके बेसिस पे आपकी 9C की भी आउटवर्ड रिकंसिलेशन बन जाती है। तो जनरली जितना हमने देखा है, पीपल आर टू स्ट्रांग इन, मतलब जो नोटिस आए हैं वो मेजरली ITC आए हैं, इसलिए हमने ITC में ज्यादा दिमाग लगाया था। आउटवर्ड इट गोज स्मूथ। ध्यान ये और रख लीजिएगा 26 और बाकी सब जगह जहां जहां आपने रिपोर्ट किया है वो सारी सेल्स सप्लाईज पॉजिटिवली तरीके से कंपेयर हो जाए, और जब भी आप अपनी ये 9C फाइल करें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपने पास जरूर रखें। So with this, my outward tax liability is also complete. Now, house is open for the question answers. तो एक बार पहले तो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मैंने बोले नहीं, 3 4 क्वेश्चंस। एक ये और ले लेते हैं, क्या नाम है जो से एक पहले वो ले लो अभिनव, अनुज जी HSN, वाला ले लो पहले। पहले उनका ले लो, वो अनुज जी वाला। अनुज जी का। मोहित जी आपके पर्सनल इस पे देखिए, जूम में जो पर्सनल होता है ना उस पर डाली हुई है मैंने दो क्वेरी, एक अनुज जी की और एक पुष्कर जी की। अच्छा, आपसे आई होगी ना, ठीक। हाँ मेरे से आई होगी, आपको पर्सनल फ्रॉम चाहिए। Anuj Gupta, treatment of ITC in education institute where taxable income, where there is a taxable rental income but exempt education income। अच्छा जी, ITC टू बी रिवर्स अंडर विच सेक्शन? सो सर ITC जो आप रिवर्स करोगे वो 42 43 के अंदर रिवर्स कर दोगे, क्योंकि एक तरफ टैक्सेबल सप्लाई है और एक तरफ एग्जाम्प्ट सप्लाई है, प्रोपोर्शनेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन क्रेडिट ओनली। और जो डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा वो क्या कहेगा, टोटल क्रेडिट इक्विवेलेंट टू कॉमन क्रेडिट, उसके बाद आपको अपनी रिकंसिलेशन देके समझ संभालना है, ठीक है, क्योंकि उसको कहीं पे भी एक फॉर्म में जो लपूना है, या फॉर्म में एक चीज और आ सकती थी कि भैया वो वहां पे हमसे कॉमन क्रेडिट अगर पूछ ले यहीं पे ही, तो शायद ये वाला शोकोज नोटिस का पॉइंट ड्रॉप हो सकता है, बट कहीं पे भी एज सच मैकेनिज्म नहीं है। अब इनका सवाल ये है, क्रेडिट नोट filled in GSTR 1 under IGST, however no other IGST liability in that month, so IGST figure comes negative, and negative figure not allowed in GSTR 3B. Paid excess tax while credit note is showing in GSTR 9, liability is showing lesser than paid। दिस पुष्कर जी क्वेश्चन। पुष्कर जी का ये सवाल है। तो पुष्कर जी क्या कहते हैं कि मोहित मैंने एक सप्लाई करी, उसका टैक्स पे कर दिया, और लेटर ऑन मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, और फ्यूचर में मेरे पास दो सिनेरियो लेते हैं कि फ्यूचर में कभी भी उस नेचर की सप्लाई नहीं आएगी, तो इन दैट केस आई वुड एडवाइज यू सीक द रिफंड अंडर सेक्शन 54। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो फ्यूचर में लायबिलिटी आ जाएगी,
तो जब फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी तो आपका जो ये इस साल का जो जीएसटीआर 9 जाएगा, इट विल शो यू इन एक्सेस टैक्स पेड इन टेबल नंबर 9। और नेक्स्ट ईयर का जब आप 9 फाइल करेंगे, इट विल शो अ लेसर टैक्स पेड इन जीएसटीआर 9। तो जब वो नेक्स्ट ईयर का जब नोटिस आएगा तो आपको प्रीवियस ईयर के उससे समझाना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। रीजन बीइंग, वो हमेशा आपसे इनवॉइस की ट्रेल मांगेगा और रीजन पूछेगा व्हाई यू हैव पेड द एक्सेस टैक्स। और इसके रिलेटेड एक सर्कुलर भी है, वो भी आप यूज कर लीजिएगा, जिसमें उसने दोनों ऑप्शन दे दिए। इन केस ऑफ दिस सिनेरियो यू कैन आइदर क्लेम द रिफंड और यू मे एडजस्ट इट इन द फ्यूचर लाइफ। अब माधव बत्रा जी, if there is an input of FY 24-25 recorded in books which has not been reflected in 2B during 24-25, hence not claimed, but thereafter has been claimed in 25-26, should such input be reported in 8C? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि इसको ऐसे समझते हैं, 24-25 में मैंने एक क्रेडिट ले लिया जो 2B पे नहीं था, और वो क्रेडिट आया है 25-26 में। तो पहली बात, जो मैंने 24-25 में क्रेडिट लिया, इज इट अ क्रेडिट as per section 16? So answer per se, if I am talking about the legal sense, तो वो मेरा क्रेडिट जो था वो एक्सेस अवेलमेंट था, क्योंकि वो 2B पे नहीं आ रहा था। सेकेंडली, वो क्रेडिट नेक्स्ट ईयर आ गया। तो इसकी अगर जीएसटीआर 3B की रिपोर्टिंग ऐसे हुई है कि जिसमें सिर्फ मार्च में जब वो नहीं था तब हमने लिया, उसके बाद हमने कभी भी उसको कंसिडर नहीं करा, एक रिपोर्टिंग 3B में ये हो सकती है। दूसरी रिपोर्टिंग ये हो सकती है कि जो मैंने मार्च में लिया क्योंकि वो 2B पे नहीं आ रहा था, तो जब वो आया, अगर मैं उसको रिवर्स करके अवेल कर लूं, तो देन दिस वुड ऑल्सो बी अ गुड रिपोर्टिंग। उसमें क्या होगा, मैं यहां पर कहूंगा मैंने एक्सेस ले लिया था और आपका रिवर्स कर दिया था एक सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में मैं टेबल नंबर 8C को हिट करूंगा और टेबल नंबर 12 और 13 को हिट करूंगा, स्टेटिंग दैट कि मैंने अवेल ही नेक्स्ट ईयर किया, और जो मैंने यहाँ 100 लिया था वो एक्सेस अवेलमेंट था, और उसकी एक जगह मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा टेबल नंबर 12 के। तो मुझे। दिस वुड बी। हाँ जी। जी जी जी। आई थिंक कंप्लीट हो गया सर आपका। हाँ हाँ। दीपाली जी की एक क्वेरी ले लीजिए। हाँ, दीपाली जी दीपाली का जी भी। शॉर्ट में आप क्वेरी पूछिएगा, थोड़ा टाइम लिमिटेड है, प्लीज। इवनिंग। हाँ जी। हेलो हाँ जी मैम। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर, आपने बताया कि मार्च 24-25 में जिन्होंने पेंडिंग रखा वो भी सही है, और जिन्होंने टेबल 4B2 में टेम्परेरी रिवर्सल किया वो भी ठीक है, जो गुड्स इन ट्रांजिट में रहते हैं। जी। दोनों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। क्वेरी ये है कि क्या गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बुक्स में होंगी उस केस में? मैम एक चीज समझाएं, जैसे आप एक्यूरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, तो एक्यूरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल डेटेड 31 मार्च या 28 मार्च, गुड्स रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसको हम जीआईटी के रूप में हम अपने यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंटिंग बुक्स में। तो मेरे हिसाब से आपको उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है दीपाली जी। अब आप ये मान लें एंट्री कि। क्या बनेगी? हाँ जी। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री वही बनेगी, गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट। इनपुट यानी डेबिट। इनपुट डेबिट। इनपुट डेबिट कर लीजिए या डेफर कर लीजिए, जैसा आपको समझ में आए। लेकिन वो इनवॉइसेस नहीं थे उस टाइम पे हमारे पास। हाँ, तो जैसे आज हम प्रोविजनिंग की एंट्रीज होती हैं, जैसे सपोज कुछ इनवॉइसेज हमारे पास अप्रैल मई जून में आते हैं, बट दे बिलोंग्स टू दी प्रीवियस पीरियड, तो हम उस हम्म, में भी हम पीछे लेके जाते हैं ना, प्रोविजंस की एंट्रीज खड़ी करते हैं ना। हम्म। तो सिमिलरली आप उसको भी वहां पे शो कर दीजिए। और मान लीजिए कि अभी अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं और टैक्स ऑडिट भी फाइल हो चुकी है और उसमें और कंसिडरेशन में नहीं आया है, नहीं आया है तो, और वो इनवॉइसेस पेंडिंग किए थे उस टाइम पे। तो 8C का पार्ट तो बनेगा बनेगा। हम्म, यहाँ तक हम एक जगह हैं। हम्म, आप 8C का पार्ट बनाइए। हम्म, अगर आप 8C का पार्ट बनाओगे, जैसे टेबल 13 में अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो इसको एग्जाम्पल के तौर पे,
टेबल 13 में आप जीएसटी 9 की टेबल 13 में तो रिपोर्ट नहीं करोगे, ये कहते हुए क्योंकि ये बुक्स में नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आप इस क्रेडिट को अवेल करेंगे। हम्म। तो नेक्स्ट ईयर जब आप क्रेडिट को अवेल करेंगे तो ये उस साल के टू बी पे नहीं आएगा। हम्म। तो उस साल के टू बी पे नहीं आएगा। तो अब आपको इस क्रेडिट को ये बताना ही पड़ेगा कि ये प्रीवियस ईयर का क्रेडिट है। टू बी में आ रहा है, नेक्स्ट ईयर की टू बी में आ रहा है, लेकिन बुक्स में नहीं है। नहीं नहीं, जब आपका जो टेबल 8A बनेगा 25-26 का, हम्म। उसके अंदर से तो हट जाएगा ना उसमें, हाँ जी, हाँ कि वो जी। 24-25 के उसमें आ चुका है। हम्म। उसको हमें ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको बुक्स में नहीं इंकॉर्पोरेट करता हूँ, रिस्पेक्टिव टेबल्स हम्म। को नहीं टच करता, भाई हम्म। आइडियली 8C टेबल हिट होनी चाहिए थी, टेबल नंबर 13 हिट होनी चाहिए थी हम्म। ऑफ जीएसटी 9। अब हम्म। क्योंकि आपकी बुक्स में नहीं है तो 8C तो आप हिट कर लीजिए, हम्म। 13 आप नहीं हिट करते हैं तो हम्म। आगे आपके पास जब नोटिस आएगा तब आप एविडेंस के बेस पे इसको डिफेंड कर लीजिए। नोटिस तो इसलिए आएगा जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे 25-26 में, हम्म। आप 6A1 को हिट करोगे हम्म। ये कहते हुए प्रीवियस ईयर का है, तो वो आपसे पूछेगा 6A1 में अगर हिट किया है तो वो आपसे पूछेगा टेबल नंबर 13 में दिखा दो। हम्म। तो आप ये बताओगे टेबल 13 में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने बुक्स में बुक्स नेक्स्ट में ईयर। नहीं लिया था। जी। ठीक है ना, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। क्रेडिट आपका इंटैक्ट रहेगा, क्रेडिट लूज नहीं होगा, बट लिटिगेटिव है। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक अब यू। अभिनव जी प्लीज आस्क योर क्वेरी। अच्छा, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, ये मेरे विचार हैं, मैं किस तरीके से इस केस को अगर करता तो मैं डिफेंड कैसे करता। अभिनव हेलो जी। सर, एम आई यस ऑडिबल? शॉर्ट, यस शॉर्ट प्लीज, ओवर टू यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है मर्जर के ऊपर कि अरे ए बाप लिमिटेड की टर्नओवर 100 करोड़ है और बी लिमिटेड के दो वर्टिकल्स हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 70 करोड़ है और रेंटिंग बिजनेस है 30 करोड़ का। ठीक रे। है। जी जी। अब एनसीएलटी का मर्जर का ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव पास होता है 1 अप्रैल 2024 से फॉर ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ बी। मतलब बी का ट्रेडिंग बिजनेस ए के बिजनेस में मर्ज हो गया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जी बेसिकली जब ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट फाइल करेगा विद कंपनीज लॉ, तो वहां पे वो 170 करोड़ की टर्नओवर दिखाएगा। तो जी। जीएसटीआर 9 में उसको 100 करोड़ दिखानी है या फिर 170 करोड़ दिखानी है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली बी लिमिटेड ने जीएसटीआर 3 भी फाइल करी है 100 करोड़ की, बट बैलेंस शीट फाइल करेगा वो 30 करोड़ की, जो उसने रेंटिंग बिजनेस मर्ज नहीं किया। तो क्या वो जीएसटीआर 9 100 करोड़ की फाइल करेगा या 30 करोड़ की फाइल करेगा? आपके हिसाब से अभिनव जी उसे क्या करना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो जीएसटी में जो रिपोर्ट किया है वही दिखाना चाहिए, बट जीएसटीआर 9C में जब बैलेंस शीट का डिफरेंस आएगा वो कहाँ दिखाना है फिर? पहली बात, जब 9C में वो ऑडिटेड मांगता है आपसे, हाँ जी। आप वहां पे वहां ऑडिटेड दिखाएंगे, और उधर वो आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देता है, वहां पे आप एडजस्टमेंट दिखा दें और लिख दें कि वाई यू हैव ऑप्टेड दिस। तो वो अदर वाले रीजन में दिखाना है जो बैलेंसिंग फिगर वाला है। क्योंकि ये बिल्कुल ही वो है ना, एबनॉर्मल रीजन, भाई रूटीन नहीं है। जो उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है उसमें से कोई सिलेक्ट होगा नहीं आपका, तो उधर लास्ट में उन्होंने एनी अदर दे रखा है, एनी अदर में डाल दीजिए। सर दो सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ यू विल अलाउ, वेरी नहीं स्मॉल क्वेश्चंस। नहीं अभिनव जी, अभी और बहुत अ, सारे क्वेश्चंस उसमें हैं। मैं ये पूछूंगा अभिनव जी, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपका ये वाले केसेस सर हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ अगर आप नंबर दे दें, हाँ तो यू हाँ कैन हाँ, रिप्लाई एट योर कन्वीनियंस। बिल्कुल यस। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। एनएस से एक आ रहा है, प्लीज रेज आस्क योर क्वेरी एनएस से। सुमित जी, एक और बता दो कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ताकि दस बाकी ऑडियो रह जाएगा। 10 से 15 मिनट, और हमने अभी आपको चार भाई तीन चार 5:40 क्वेरीज। हो रहे हैं तो 5:50 वी विल टेकिंग द लास्ट क्वेरी, ऐसा हाँ करें। हाँ, और 3 4 क्वेरी मैंने आपको पर्सनल चैट पे भी डाली हाँ है। हाँ, मैं करता जाता हूँ सर, और मैं, आप जैसे जैसे अलाउ करेंगे। जी, यस। सर मेरा एनएस से प्लीज। क्वेश्चन वो है जो भी यस मैम ने पूछा है। एम आई ऑडिबल सर? जी सर। यस यस। सर मेरा भी क्वेश्चन वही जो भी मैम ने पूछा था। सपोज किसी क्लाइंट ने 24-25 की इनवॉइसेस 25-26 में बुक की है हम्म। फॉर एनी रीजन, जी और उसका आईटीसी भी उन्होंने 25-26 में क्लेम कर लिया बिफोर 30th of November। जी सर। अब मुझे ये वाला जो आईटीसी है, शुड आई डिस्क्लोज दिस इन टेबल 8C and 13? सर इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये प्रायर पीरियड हो गया एक तरीके से। ठीक है। ट्रायल पीरियड, एग्जैक्टली। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब प्रायर पीरियड कर लिया। अब टेबल 8A में वो आ रहा है, 8A में आ रहा है। अब क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टेबल 8A तो स्पेसिफिक रिकंसिलिएशन मांगता है, जो 2B में बता दो कि आपने क्या किया है, उसका हाँ जी बुक सर। से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, तो आपने 8C में उसको रिपोर्ट कर दिया। हाँ अब जी सर। दूसरी सिनेरियो ये है कि क्या मुझे टेबल नंबर 13 ऑप्ट करना है या नहीं करना। हाँ जी हाँ अब जी।
अगर मैं टेबल नंबर 13 ऑप्ट करता हूं थोड़ी देर के लिए, हाँ जी। टेबल नंबर 13 ऑप्ट तभी करना चाहिए आइडियली जब वो बुक्स में हो। हम्म। अब अगर मैंने ठीक। 13 नंबर ऑप्ट कर लिया, अब मैं 9C फाइल करने जाता हूँ इसकी, तो तो 9C में मिसमैच। फिर वो मेरे से पूछेगा व्हाट इज माय ऑडिटेड आईटीसी, हम्म। तो वहां पे फिर चैलेंज। तो इस सिनेरियो में क्या है, जो ये अब सिचुएशन हो चुकी है इस केस में, हाँ जी। आप बुक्स को तो छेड़ो मत। बुक्स में तो यहाँ पे 8C में रिपोर्ट कर दो। ठीक है सर। 13, टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 9 वुड बी अ चैलेंज, एज वेल एज टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 9C वुड बी अ चैलेंज। अगर ओके। पर्सोना वैसे लीगली समझेंगे तो मेरे हिसाब से ना 13 में जाएगा, ना 12 पे जाएगा 9C के। बट अगर सिस्टम सिस्टम अगर समझोगे, सिस्टम कैसे हम्म। समझेगा? सिस्टम तो तभी समझेगा अगर वो 13 में रिपोर्ट हो जाए और 12 उसमें रिपोर्ट हो जाए। मतलब जो जीएसटीआर का टेबल है, बट वो टेबल में 13 में आप रिपोर्ट करते हो तो क्या होगा कि सिस्टम समझ लेगा, बट लीगली वो ठीक नहीं है। 8C में अगर हम रिपोर्ट करें और नेक्स्ट ईयर में 6A1 में वो आप डालोगे, उसको बोल देना डालेंगे। भाई मैंने 8C में डाला भाई है, और 13 में मैंने क्यों नहीं डाला उसका रीजन समझा देना। पर सर एक छोटा सा इसमें और है, जैसे 8C में वो लिखता है आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज हाँ जी। रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हाँ तो जी। इसमें तो वो आ सकता है जो मेरा मटेरियल चला तो मार्च में है पार्टी के यहाँ से, जैसे वो जीआईटी वाला आपने मैटर बताया, पर कंपनी नॉर्मली डोंट बुक एज ए गुड्स इन ट्रांजिट, हम्म। मतलब कई कंपनी नहीं बुक करती। तो वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं ना कि मटेरियल तो हाँ मेरा सर। अप्रैल में आया। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई ठीक। कोई चैलेंज नहीं है। राइट। अनुज जी, आस्क योर थैंक क्वेरी। यू सर। थैंक यू सर। और मीन टाइम में एक चीज़ और बता दूं, मेरा एक कासा का एक ऑडिट हेल्प डेस्क ग्रुप चलता है जिसमें 900 मेंबर्स हैं। तो उसमें भी आप क्वेरी डाल सकते हैं, ओनली हाँ क्वेरी जी सर, आप डिस्कशन सुन के लिए सकते हैं। व्हाट्सएप पे। यस। हाँ जी मेरी हाँ जी छोटी सी सर, सुन मेरी सकता हूँ। यस छोटी अनुज सी जी। क्वेरी है। यस। जैसे सपोज मेरी रेंटल इनकम है 1,90,00,000 की, विच इज टैक्सेबल। उसके अलावा मेरी 30 लाख की इंटरेस्ट इनकम है एफडी से, जो मिला के 2 करोड़ क्रॉस हो जाता है। तो इस केस में 9 फाइल होगी। मैं हाउस से पूछता हूँ सर, फाइल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ देखो, सेफर बेट तो ये है क्योंकि वो उन्होंने इंटरेस्ट को ना एग्जाम सप्लाई बोल दिया है। हाँ जी। तो अगर तकलीफ ना हो तो सर 9 कर दो। अच्छा, बट मैंडेटरी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नुकसान नहीं है। नहीं ठीक है। आइडियली फाइल कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे ठीक अगर वो ठीक है। रिपोर्टिंग आ रही है ठीक है। तो ऐसी एक मतलब सिनेरियो और है कि टैक्सेबल इनकम 0 है, बट हाँ। प्रॉपर्टी सेल से करीब 50 करोड़ की इनकम है, विच इज नॉन जीएसटी। तो उस केस में फाइल करनी चाहिए 9 एंड 9C? नहीं सर, नहीं। नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं। थैंक यू सर। मोहित जी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेरी हैं, नाम के साथ आप ले लीजिए, 4-5 क्वेरी हैं। और अजय मेहता से शुरू कर लूं सर, यस, या कहाँ से शुरू करना है वो बता दो बस आप। जस्ट माधव जी मतलब की मैंने कर ली थी, आवृत्ति हाँ, वर्मा जी। पुष्कर के बाद माधव जी की बात कर लीजिए आकृति से। हाँ, आवृत्ति वर्मा जी आवृत्ति। सर, इफ आई टेक B2C सप्लाई ऑफ FY 23-24 इन FY 24-25 GSTR 1 अप टू टाइम लिमिट इन GSTR up to time limit in GSTR 9 previous year supply also included in 9, table 4A B2C where I can bifurcate my GSTR, एक मिनट, if I take B2C supply of FY 23-24 इन FY 24-25 GSTR 1, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर आपने कर लिया है, इन GSTR 9 प्रीवियस ईयर सप्लाई ऑल्सो इंक्लूडेड इन GSTR 9, वो तो होगा, ठीक है। टेबल 4A B2C, ठीक है, वेयर कैन आई बाइफिकेट माई प्रीवियस ईयर सप्लाई इन GSTR 9? तो मैम ये तो आपने जब अपनी 23-24 की भरी होगी तो उसी टाइम आपने टेबल नंबर 10 और 11 को यूज कर लिया होगा अप्रोप्रिएटली, तब आपने वहां पे रिपोर्ट कर दी होगी। और वो टेबल नंबर 14 में आपने उसका टैक्स पेबल दिखाया होगा, और इस साल टेबल नंबर 9 के अंदर वो एक्सेस टैक्स पेड दिखेगा। इस साल आपको इस सप्लाई को कहीं रिपोर्ट नहीं करना। देन आई एम गोइंग टू शैलेंद्र गुप्ता जी, इन 4F net advance is coming after adjustment of previous year advances for which invoice has been raised, is that correct? ये शैलेंद्र जी 4F कौन सी की बात कर रहे हैं?
9 की, एक सेकंड, एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड. In 4F, net advance is coming after adjustment of previous year advances for which invoice has been raised. सर इनवॉइस जिसका रेज हो जाएगा वो तो यहाँ नहीं आएगा, वो तो नेट करके ही आएगा यहाँ पे, और वो सप्लाई में जुड़ जाएगा. अज्यूमिंग मेरी टैक्सेबल सप्लाई थी 100 रुपए, एडवांस आया मेरे पास 10,000 रुपए का, और 6,000 रुपए का अगर मैंने कोई इनवॉइस रेज कर दिया है तो 4,000 रुपए मेरे को यहाँ रिपोर्ट करना है. इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस सप्लाई. देन लेट मी गो टू अजय मेहता जी. अजय मेहता जी पूछ रहे हैं, वन बिल अमाउंट वाज अमेंडेड इन GSTR 1 बट द पार्टी फॉरगॉट टू चेंज द वैल्यू इन बुक्स. द ऑडिट इज ऑलरेडी डन एंड फाइल्ड. What to do in GSTR 9 as I have to change it in the current month GSTR 3B. The party is ready to forward the credit. सर देखो, कभी भी आपका कहीं पे भी कंफ्लिक्ट हो, तीन चीजें होती है हमारे पास. एक होती है हमारे पास बुक्स, एक होती है हमारे पास GSTR 1 या GSTR 3B रिस्पेक्टिवली, और एक होता है GSTR 9 जहां पे हमें रिपोर्ट करना होता है. तो कभी भी कोई चीज का कंफ्लिक्ट हो तो बुक्स वुड ऑलवेज प्रिवेल. तो जो बुक्स में घटना घटित हुई है उसके हिसाब से ही आपको 9 अपनी फाइल करनी है. डिस्पाइट 1 में कुछ और हो गया और 3B में कुछ और हो गया. ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी आपको बस कॉल ये लेनी है कि भाई जैसे अभी आपने कहा द पार्टी इज रेडी टू फॉरवर्ड द क्रेडिट, देन आप अपने 1 के बुक्स के हिसाब से ही फाइल करें, एंड अगर उसमें कोई डिविएशन आता है देन पे दी टैक्सेस जो भी ड्यू है, और अगर एक्सेस टैक्स पेड है तो उस केसेस में नोटिस नहीं आएंगे आपके पास, और अगर आता है तो आप उस टाइम एक्सप्लेन कर देना. CA Kansha Mishra, I had reported reverse input. I had reported reverse input in GSTR 3B under 4B. अच्छा जी, since the ITC did not pertain to me. आकांक्षा जी 4B1, 4B2 वो थोड़ा क्लैरिफाई करिएगा. In the following month, the supplier issued a credit note. Now I am reversing 4A5 after excluding this credit, which is causing a difference in table 8D. Please advise how. हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इन हैंड क्या है, एक सबसे बड़ी, कि जो मैंने डिस्कशन भी किया था ड्यूरिंग दी माय प्रेजेंटेशन, कि आज मेरे पास एक माल आया या गुड्स आए और मैंने इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 मैंने उसको रिटर्न कर दिया. तो रिटर्न करा तो मैंने जनवरी में रिड्यूस कर दिया. हाउएवर सप्लायर हैज रिपोर्टेड दिस क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ, अज्यूम करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. अब जनवरी का जो क्रेडिट 4A5 में मेरा उठ के आ रहा है, व्हाट दिस क्रेडिट इज कमिंग, 4A5 इज कमिंग अज्यूमिंग 100 रुपीज, और जो मेरा रिवर्सल था वो 20 रुपीज का था ऑन अकाउंट ऑफ परचेज रिटर्न. तो मैं दो तरीके से इसकी रिटर्न फाइल कर सकता था. एक, मैं 4A5 को 80 रुपीज कर देता, स्टेटिंग दैट आई हैव टेकन द नेट ऑफ क्रेडिट. दूसरा, मैं 4A5 को 100 से डालता और 4B1 के अंदर मैं 20 रुपीज रिवर्स कर देता, क्योंकि ये जो क्रेडिट नोट का रिवर्सल है परमानेंट नेचर का है. अब सिनेरियो नंबर 2 आता है मेरे पास जिसमें मार्च के अंदर उस पार्टी ने क्रेडिट नोट रिपोर्ट कर दी. मेरी बुक्स का क्रेडिट है 150 रुपीज. हाउएवर इट इज टेकिंग अ इफेक्ट ऑफ 20 रुपीज क्रेडिट नोट जो जनवरी में पार्टी ने उस टाइम रिपोर्ट नहीं किया था बट मैंने बुक्स में ले लिया था. तो वो जो क्रेडिट 150 का जो मेरी बुक्स में है, बट 2B में कितना आ रहा है, 130. अब मुझे 130 लेना है या 150? आइडियली आई शुड टेक 150. 150 लूंगा, उसके बाद मेरे पास एक शोकॉज नोटिस बन के आएगा जिसमें वो ये कहेगा दैट यू हैव अवेल्ड एक्सेस क्रेडिट इन द मंथ ऑफ मार्च टू द एक्सटेंट ऑफ 20 रुपीज. तो इन दैट केस यू नीड टू गिव अ रिप्लाई दैट दिस क्रेडिट हैज ऑलरेडी रिवर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. बट आइडियली व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस, बेस्ट सिनेरियो ये है कि जब भी ऐसे क्रेडिट नोट्स आए, आप दूसरी पार्टी को कनेक्ट रह के उसको बोलो भाई तू रिपोर्ट कर दे, सो दैट आपके सिस्टम जनरेटेड नोटिस बच जाए. इसमें अल्टीमेटली रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट रिपोर्टिंग गैप की वजह से सिस्टम वुड जनरेट दी नोटिस. नाउ लेट मी टेक कनिका विच एंड देन श्याम गुप्ता जी की लास्ट क्वेरी ले लेंगे. ठीक है सुमित जी? ओके सर, ओके ओके. हाँ, अलाउ कर रहे हैं?
जी 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 जी। In case of an SSE, B2C sales for FY 23-24 were amended in GSTR 1 of September 2024-25. While filing the GSTR 9 for 2023-24, it was correctly shown in Table 10. Supply tax declared through amendment and this. Now GSTR 9 of FY 24-25, the statement is showing automatically in total of current year sales. मैम इसको हटा दीजिएगा आप, क्योंकि ये करंट ईयर के पर्टेनिंग नहीं है, तो आप हटा दीजिएगा। इधर टेबल नंबर 9 में आपका एक्सेस आ जाएगा, ये टेबल नंबर 9 आपके लास्ट ईयर के टेबल 14 से मिल जाएगा। श्याम गुप्ता जी का है, इफ द पार्टी मेंशन डेट ऑन बिल रिलेटेड टू FY 24-25 बट मेंशन डेट रॉन्ग रिलेटेड टू FY 23-24, ये क्या है? इज देयर इज नीड टू शो दिस बिल इनटू 6A1 और नीड टू शो द डिफरेंस? सर ये कह रहे हैं कि इनवॉइस तो 24-25 का ही है और पार्टी ने इसको 23-24 में रिपोर्ट कर दिया कि GSTR 1 उन्होंने जब अपनी फाइल करी तो 23-24 सिलेक्ट कर लिया, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस उन्होंने वहां चेंज कर दी। अब सर पूछ रहे हैं कि इसको 24-25 में क्या मैं 6A1 में दिखा दूं? सो आंसर इज नो सर, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो इस साल के 6A1 में तो दिखा दोगे आज की डेट में, जब कल वो आपसे एविडेंस मांगेगा तो उस एविडेंस में इनवॉइस आएगा 24-25 का। तो लेट द टेबल नंबर 8D नेगेटिव, 8D आपका नेगेटिव आएगा, और जब वो आपसे एविडेंस मांगेगा तो आप ये बताना इट्स अ मेयर रिपोर्टिंग एरर मेड बाय द सप्लायर, और इसका एक सर्टिफिकेट आप सप्लायर से आज ही ले लें, सो दैट जब लिटिगेशन आएगी तो इट विल हेल्प यू। और इस टाइम आप ये सर्टिफिकेट और 2023-24 का 2B दिखा दीजिएगा, जहां पे आप ये प्रूव कर देंगे दैट द क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड आफ्टर फुलफिलिंग ऑल दी कंडीशंस। सो विद दिस सुमित जी, मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज हो गई हैं। सर नाउ सारी तो नहीं हुई है, बट मैंने एक ऑप्शन दिया है क्योंकि हमारे पास एक ऑडिट हेल्प डेस्क का ग्रुप है खासा का, जिसमें क्वेरी ही डिस्कस करते हैं। उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा क्वेरी जो रहती है, क्योंकि कई क्वेरी अभी भी रहती हैं और बाद में भी रही जाएंगी। जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें। तो जो एक्सेल मैंने भेजा है तो उसमें आई हैव ट्राइड टू गिव द आंसर टू द मैक्सिमम क्वेरीज, और अपने हिसाब से वो अपना कॉम्बिनेशन बना लेंगे, यस। तो आप वो मुझे शायद। वो प्रेजेंटेशन एक्सेल ये शेयर कर दीजिएगा आफ्टर द सेशन, सो डेट कि मैं शेयर कर पाऊँ सबको। और मैंने आप सभी लोगों को एक अपना कासा का मेंबरशिप का लिंक और एक कासा का ऑडिट हेल्प डेस्क का ग्रुप का लिंक यहाँ पर शेयर किया है। आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और कोई भी इशू है उससे रिलेटेड जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ओनली इश्यूज, नॉट कि अपडेट्स, अदर थिंग्स। सो स्पेशल थैंक्स टू मोहित जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट। हमारे साथ मोहित जी एज ए पैनलिस्ट, ही इज संगरूर ब्रांच ऑफ NIRC कमेटी मेंबर। सो वाह। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनली से वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है। तो थैंक यू मोहित जी। पहले तो 2 आवर्स में आपने जितना ब्यूटीफुली मतलब एक्सप्लेन किया, कंपाइल किया, उसके लिए वेरी मच थैंक यू। और वी ऑल्सो थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर प्रेजेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कशन, एंड वी विल ईगरली वेट योर पार्टिसिपेशन इन ऑल द फ्यूचर प्रोग्राम्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मोहित जी, एंड थैंक थैंक्स यू टू सर, ऑल। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक थैंक यू यू। इमांक। थैंक यू सर। बाय। आई थिंक लिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ सो डेट अगर कोई रह गया है तो। एक बार मैं कासा का भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, और अपना क्वेरी हेल्प डेस्क का भी लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। दोनों लिंक मैंने द्वारा शेयर कर दिए। एक कासा की क्वेरी के लिए, एक्सक्लूसिव क्वेरीज के लिए है, और एक कासा की एक्टिविटीज, रेफरेंस कोर्स एंड अदर एक्टिविटीज के लिए एक कासा का मेंबरशिप लिंक है। दोनों लिंक आप लोगों को दोबारा शेयर कर दिए। तो विद दिस वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाउ क्लोजिंग द मीटिंग इन ए मिनट। थैंक यू थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू।
मोहित जी आप हैं अवेलेबल, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, क्योंकि बाद में आप भी बिजी हो जाएंगे। और मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट है वो मेरे कहीं ना क्या डालूं? कहीं मैसेज, वो मुझे पीपीटी और एक्सेल पे। प्रेजेंटेशन एंड वो। हाँ, वो तो जो आपने मेरे को दूसरा नंबर भेजा है ना, मैं उसमें हाँ भेज उसी पे डाल दीजिए, मैं उसी से शेयर करूंगा तो मुझे